So I'll just go ahead and share my screen now. So as all of you know, according to the schedule also, the topic for today's discussion will be how do you enhance your teaching learning with the AR, VR, and interactive videos. So basically, so far in this course, you might have already gone through the various aspects of OBE, the self-assessment report that is SAR, and NBA, that is how do you get accreditation, how do you have your design your course outcomes, program outcomes, etc. So this will be a very different field altogether, but then it has a major impact on your outcomes as far as outcomes are concerned, as well as the attainment of those course outcomes, because we are talking about how do you enhance your daily teaching learning through some ICT based tools. Of course, you have had a session on AR and VR, particularly on AR, which was with the help of a tool known as Blip AR. But in this session, we will be talking briefly about AR VR, as well as we will be talking about some add-ons to PowerPoint, basic PowerPoint, which you can use in your daily teaching learning, to enhance the learning in your classroom environment, right? So if you feel that the language, the mode of communication is Hindi is okay, so I'll be going with the bilingual mode, so that sometimes what happens is when we are continuously speaking in English at the same pace, we somewhere get lost in the lecture. So I will also try and speak in Hindi, so that ki you are also or awake, and the message जो है वो आप तक अच्छे तरीके से पहुंच सके, and I hope that most of you will be able to understand Hindi also. I'll just go ahead and share my screen, and the actually the presentation is titled something called as the gamification in teaching learning. So basically, जब हम AR VR की भी बात करते हैं, so what we are trying to do is we are trying to create a immersive learning environment through some kind of active learning, right? So though the lecture is titled here, the gamification in teaching learning, whatever aspects that is AR, VR, or the interactive videos that we'll be talking about will be more concerned towards it could be enhanced teaching learning through aspects like gamification, because gamification भी एक बहुत important aspect है, or through AR, VR, or through the last topic is through interactive videos, right? सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, हम बात करने वाले हैं गेमिफिकेशन के बारे में कि गेम्स के थ्रू हम हमारी टीचिंग लर्निंग को एनहांस कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि गेमिफिकेशन का एस्पेक्ट क्या है, क्या हिस्ट्री है उसके पीछे, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, और कौन सी टेक्निक्स, जो बेसिक टेक्निक्स है, कोई एडवांस टूल नहीं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जस्ट बेसिक टेक्निक्स जस्ट लाइक पावर पॉइंट, और उसके साथ कोई कौन से फ्री एड ऑन्स हम अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं, सो दैट जो लर्निंग है वो एक्टिव लर्निंग हो सके स्टूडेंट्स के बीच में, राइट? So I hope you can see this video, which is being played on the right side of the slide. And basically, this is a video in, I think, in Sweden, जहाँ पे, there was an exercise, sorry, Stockholm, where there was an exercise that how do you encourage people to exercise more. So what they did was, एक conventional staircase को उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको everyday commuters के लिए एक नॉर्मल एस्केलेटर लगाने की जगह दे हैड अ डिफरेंट आइडिया, जिसमें उन्होंने उस पूरे स्टेयरकेस को किसमें चेंज कर दिया, एक पियानो में चेंज कर दिया, एंड देन दे वांटेड टू चेक व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द daily commuters, right? So they did this by making the stairs more fun, making it a giant piano, and they actually found out that 66% more people than normal chose the staircase over the escalator, right? And of course they were having fun, and as well as they were a lot of exercise was involved in it, right? So in this way we can conclude from this basically experiment that you can actually gamify uh, basic activities and specifically teaching learning, right? So and then you can have a greater engagement, and then if it is greater engagement it will lead to a greater retention by the students, right? तो गेमिफिकेशन क्या है? गेमिफिकेशन का मतलब है कि जो भी नॉन गेम एक्टिविटी है, राइट, उसके अंदर हमने गेम एलिमेंट्स को डालना है, ठीक है? सो नॉन गेम एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स टीचिंग लर्निंग इज अ नॉन गेम एक्टिविटी, या कोई डेली कोई डे टू डे रूटीन एक्टिविटी है जो जिसके अंदर गेमिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर अगर आप गेम एलिमेंट्स को डाल देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज गेमिफिकेशन। और वो गेम एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से एलिमेंट्स आप डाल सकते हो उन एक्टिविटीज के अंदर? इट कैन रेंज फ्रॉम इंटरफेस एलिमेंट्स लाइक बैजेस, लीडर बोर्ड्स और लेवल्स। बैजेस का मतलब है कि सपोज आपके स्टूडेंट ने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्विज, बिगनर लेवल का क्विज कर लिया, तो ही गेट्स अ पर्टिकुलर सिल्वर बैच,
और उसके बाद एक इंटरमीडिएट लेवल का कर लिया तो गोल्ड बैच एंड सो ऑन, मतलब उनको बैजेस दिए जा रहे हैं। कुछ लीडर बोर्ड्स में एक्चुअली स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि हम बाकी क्लास के कंपैरिजन में वेयर वी आर स्टैंडिंग, एंड दैट एक्चुअली मोटिवेट्स देम टू टू इंक्रीज देयर स्कोर्स, और उनकी जो लर्निंग है वो ज्यादा बेटर हो सकती है। ठीक है, so as we talk about the history of gamification, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गेमिफिकेशन कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट इन 2011 फोर स्क्वायर करके एक लोकेशन शेयरिंग सर्विस थी, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअली में स्टार्ट किया था कि आप डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक प्लेसेस पे जाके चेक इन कर सकते हैं, और जब भी आप एक न्यू लोकेशन पे चेक इन करेंगे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, यू विल रिसीव पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को आप अपने लीडर बोर्ड पे डाल सकते हो और उन्हें कंपेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड देन यू कुड रिसीव बैचेस। और उससे क्या होता था, जो इंगेजमेंट थी यूजर्स की कि मेरा अभी इतना स्कोर है, देन आई गो टू अ न्यू लोकेशन, वो क्या थी, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। सो दीज डेज जो सीरियस एक्टिविटीज है उसमें भी गेमिफिकेशन को लाया जा रहा है, पार्टली बिकॉज वीडियो गेम्स हैव बिकम मेन स्ट्रीम, और जो स्मार्टफोन्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी हर जगह पे अवेलेबल हो गई है, राइट। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ गेमिफिकेशन? एक तो फिटबिट है जो हम यूजुअली अपने हैंड्स में वेयर करते हैं, विच इज अ स्मार्ट बैंड, ठीक है। उसके अंदर क्या है, इट्स अ डिवाइस which tracks primarily how many steps you take during the day and it encourages you to achieve a daily step goal, ठीक है। उसमें भी क्या है कि वो हमें एक टास्क दे रही है, एक चैलेंज दे रही है ना। गेम में भी क्या होता है, जब भी हम एक नॉर्मल गेम प्ले करते हैं, वी आर गिवन अ चैलेंज, और फिर हम एंड जब गेम खत्म हो जाती है हम देखते हैं कि अच्छा हमने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए और हम कहाँ स्टैंड करते हैं आउट ऑफ दी all the players who were playing the game, right? So playful feedback के through, game like achievements के through, leaderboards के through, milestones के through, we are actually gamifying the event। और वो कौन सी एक्टिविटी है यहाँ पे, वो एक्टिविटी है एक्सरसाइजिंग, है ना। So one is this example, then another example related to education is Duolingo ऐप के बारे में most of you might already be aware कि एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इसके अंदर बहुत इंगेजफुल तरीके से और गेमिफिकेशन को यूज करके इन्होंने बहुत फन तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, राइट। यू गेट एक्सपीरियंस पॉइंट्स एवरी टाइम यू प्रैक्टिस एंड यू कैन कंपेयर दीज पॉइंट्स विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ स्ट्रीक फीचर अगेन इज कि हर रोज आप उस ऐप पे जाएंगे एंड दिस स्ट्रीक जो है बेसिकली ये व्हाट यूजर्स डू कि दे ट्राई एंड कि वो स्ट्रीक टूटे नहीं, और उस स्ट्रीक को ना टूटने देने की वजह से दे आर एनकरेज टू कम बैक एवरी डे एंड प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। अगेन वी हैव गेमिफिकेशन, ईमेल जैसे हम सेंड करते हैं उससे रिलेटेड भी एक गेम है, ईमेल गेम, जिसमें इफ यू स्ट्रगल थ्रू योर ईमेल्स ईच डे, तो ईमेल गेम को यूज करके you can actually gamify how do you read your emails, और बेसिकली बहुत टाइम लगाए बिना आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको इन सारी ईमेल्स को रिप्लाई करना है। एक गेम और एक जो टाइम है वो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट, एक टाइमर चल रहा होता है साथ के साथ। इट एक्चुअली enhances your speed and gives you points based on your performance. So one is this, then again there was gamification in, as we talk about advertising, coca cola ने जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हो, they started a campaign wherein they have made their vending machines more playful, wherein people could earn a free coke if they hugged that vending machine. And they also had apart from that, they also had an interactive TV game promotion where people could download an app and shake it at the right time when watching a Coca-Cola advertisement, as if they were watching prizes from their कैचिंग प्राइजेस फ्रॉम देयर टीवी स्क्रीन। सो बेसिकली इसमें भी क्या किया गया है, यूजर की इंगेजमेंट को बढ़ाया गया है। जैसे एंगेजमेंट को आप बढ़ाएंगे, जो रिटेंशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो टॉप गेमिफिकेशन टेक्निक्स क्या है कि अब आप मोस्ट ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि इसको टीचिंग लर्निंग में कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डे टू डे क्लासेस में। सो गेमिफिकेशन ब्लूप्रिंट का मतलब है कि करना कैसे है, कि एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ एक्टिविटीज कुछ क्विजेज ऐसे होने चाहिए जिसमें आप स्टूडेंट्स को पॉइंट्स देंगे, कुछ बैजेस देंगे, एक लेवल होगा और लीडर बोर्ड मेंटेन किया जाएगा क्लासरूम के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीजें इट इज गोइंग टू रिलाई हेविली ऑन रिवॉर्ड्स एंड कंपटीशन टू मोटिवेट द प्लेयर्स, ठीक है। सो वी विल लुक इनटू हाउ डू यू एक्चुअली ऐड दीज एग्जिस्टिंग पॉइंट्स बैजेस, किस तरीके से हम बिना अपने करंट एजुकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब किए हम कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट गेमिफिकेशन में सिर्फ किसी को नंबर दे देना, किसी को पॉइंट दे देना, बैच दे देना, एक लीडर बोर्ड बना देना, ये सफिशिएंट नहीं है। इसके पीछे के जो दो कारण है वो एक ये है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलती है प्लेयर को, कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब ये है कि आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है कि एक डिजायर्ड आउटकम के लिए आपको करना है, ठीक है। बट अगर एक स्टूडेंट को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक टाइम के बाद वो कहता है कि क्या ही कर लूंगा मैं, जो क्लास में मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं उससे उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और ऑफ कोर्स
ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये एक्सप्लेन नहीं करते कि कुछ लोग वीडियो गेम्स क्यों खेलते हैं, बिकॉज वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए उनको कोई बाहर से मोटिवेशन नहीं मिल रही है. सो दैट इज वाई देर इज अनदर मोटिवेशन विच इज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके अंदर यू एक्चुअली find enjoyment in doing the activity itself. ठीक है. So we actually need to look into better ways कि हम किस तरीके से intrinsic motivation को support करें in games and gamification. So basically इसके अंदर जो psychological based पे जाता है, if we go deep dive into this, so basically सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी यूज की जाती है इन गेम मैकेनिक्स को प्रमोट करने के लिए. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा जल्दी गो थ्रू कर लेंगे बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की ऑटोनॉमी मिलती है जब आप कोई भी गेम खेलते हो. तो द चॉइसेस यू मेक, राइट, एंड यू व्हाई डू यू मेक देम, कि आपको इस वाले सपोज एक गेम है, जिस एक कार रेसिंग गेम है, तो उसके अंदर आपको कौन से वाले ट्रैक पे करना है. सो यू हैव ऑटोनॉमी, यू हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड, राइट. कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू बी चैलेंज अप्रोप्रिएटली. आपके सामने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से आता है. तो साइकोलॉजिकली आपकी जो कॉम्पिटेंस वाली नीड है वो भी फुलफिल होती है जब आप गेम्स प्ले करते हैं. एंड रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस का मतलब है आपकी गेम जो है वो उसका हाउ इज इट्स कनेक्शन एंड हाउ इट इज गेटिंग द सपोर्ट विद अदर्स. व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द गेम. कोई गोल रखना है दिमाग में कि जब भी अब इसको आपको अपनी टीचिंग लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करना है कि कोई गोल देना है स्टूडेंट्स को कि सपोज आज की क्लास से हमारा गोल क्या होगा कि आज हम ये सीखेंगे. ठीक है. इस एक्टिविटी के ये रूल्स हैं कि आपको मतलब यू डोंट हैव टू यूज योर फोन, या फोन आप यूज कर सकते हो, बुक यूज नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ रूल्स आप डिफाइन करोगे उस गेम को प्ले करने के लिए. चैलेंज या कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन करोगे कि व्हाट इज द चैलेंज. एंड देन ऑफ कोर्स फीडबैक भी एक एंड में प्रोवाइड किया जाएगा कि किसका कितना स्कोर बना है. ठीक है. So goals of course give you something to aim towards or to complete. Rules are describe the ways how you can achieve that goal. और conflict क्या करता है, it arises from the unique combination of goals and rules. फीडबैक इज एक्चुअली टेल यू कि आप कैसा कर रहे हैं उस एक्टिविटी में. चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें किसी भी लर्निंग कोर्स को, चाहे हम वो क्लास में पढ़ा रहे हैं या कल को हम उस कोर्स को एज ए ई लर्निंग मॉड्यूल भी कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, स्वयं में प्रपोज करना चाहते हैं, या एनआईटीटी मॉड्यूल की तरफ प्रपोज करना चाहते हैं, ये सिर्फ हमारा एक यूट्यूब चैनल है, हमारा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम किसी कोर्स को लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको गेमिफिकेशन का एलिमेंट डालना है. द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट गेमिफिकेशन इज अगेन आई विल रीआइटरेट कि उससे क्या होगा, आपके लर्निंग आउटकम्स पे जो इफेक्ट पड़ेगा, आपको असेसमेंट पे जो चेंज आएगा, दैट यू कैन डू. तो बेसिकली हाउ डू यू एक्चुअली गेमिफाई अ लर्निंग कोर्स, यहाँ पे हम वो सीखेंगे. ठीक है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अगर बारे में हम बात करें, जो भी आप लर्निंग आउटकम्स की बात कर रहे हैं अपनी टीचिंग लर्निंग में, वो दो लेवल्स पे डिफाइन की जाती है. एक होती है कॉग्निटिव मैकेनिक्स, एक होती है मोटिवेशनल मैकेनिक्स. ठीक है. तो कॉग्निटिव मैकेनिक्स में हम बात करते हैं मोर कस्टम मोर रेलेवेंट. ठीक है. कॉग्निटिव मैकेनिक्स का मतलब है कि जो भी आपने आपका सब्जेक्ट है ना, तो जैसे सपोज आप कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, तो कॉग्निटिव मैकेनिक्स में जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गेमिफिकेशन होएगी वो ज्यादा स्पेसिफिक होएगी आप जो भी कोर्स पढ़ाते हैं. ठीक है. जैसे कि स्पेसिफिक सिमुलेटर होगा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए सिमुलेटर होता है, या कोई किसी और बैकग्राउंड से भी है, तो कॉग्निटिव मैकेनिक्स में जो गेमिफिकेशन आएगी वो ज्यादा कस्टम होगी, ज्यादा रेलिवेंट होगी. ठीक है. हालांकि जो मोटिवेशनल मैकेनिक्स है, जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर, वो इंटरडिसिप्लिनरी है, तो यहाँ पे हम मोटिवेशनल मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कंटेंट डिपेंडेंट नहीं है और इसको बनाने में एफर्ट भी कम लगता है. एंड एग्जाम्पल क्या है इसका, जिसमें आप जैसे जो मैंने बात की थी कि पॉइंट्स, बैजेस, लीडर बोर्ड्स लेके आ सकते हो, तो ऐड पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो. ठीक है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में दो तरीके आते हैं. बाहर वाली साइड में जो होता है, वी हैव द मोटिवेशनल मैकेनिक्स, एंड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सर्कल ऑफ द स्पेक्ट्रम वी हैव द कॉग्निटिव मैकेनिक्स, जो ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, राइट. So basic game elements in motivational mechanics की बात we have done. We have points, we have badges and we have leaderboards. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जैसे कि एड ऐप करके एक एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है. आई विल गिव यू अ लिस्ट, जिसका मैं आपको बता दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लो. आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ बिल्ट इन गेम्स बना सकते हो. ठीक है. उस गेम के अंदर आप वर्ड सर्च बना सकते हो, क्रॉसवर्ड बना सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो. कुछ मेमोरी गेम्स ऐसी जिसके अंदर स्टूडेंट को ये लगे कि ये मेरे सामने एक चैलेंज प्रेजेंट हुआ है, कुछ रूल्स हैं इस गेम के, और इसको करने के बाद मुझे क्या उस अकम्प्लिश होगा. ठीक है. बार बार आई एम रीआइटरेटिंग कि द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर ओबी सार एंड एनबीए इज this gamification, this interactive videos या this AR VR will help you achieve your learning outcomes. ठीक है. and actually assess the impact of these ICT technologies on your learning outcomes. ठीक है. तो इससे जो आपका प्रोडक्ट जो स्टूडेंट्स के अंदर जैसे आप अचीव करना चाह रहे हो लर्निंग आउटकम, दैट ही और शी विल हैव द एबिलिटी टू
सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रही हूँ, तो जो वो एबिलिटी है वो इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ अगर आप पढ़ाएंगे तो जो वो उसकी एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया है। ठीक है, टाइम्ड क्विजेस भी आप रख सकते हो कि टाइमर चल रहा है, इसी टाइम के अंदर आपको परफॉर्म करना है। तो उस वजह से क्या होता है, दे आर एक्चुअली क्विकर ऑन देयर फीट, और उससे जो है असेसमेंट भी इजी हो जाती है। प्रोग्रेस बार अगेन, अगर किसी ने कोर्सेरा या जो थोड़ा दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रोग्रेस बार, तो वहाँ पे विजुअल इंडिकेटर ऑफ वंस प्रोग्रेस कैन फर्दर मोटिवेट लर्नर। वहाँ पे आपको नीचे एक प्रोग्रेस बार नजर आती है कि आपने इतने मॉड्यूल्स खत्म कर लिए, आपके इतने मॉड्यूल्स रहते हैं। तो जो एक प्रोग्रेस बार से आपको एक विजुअल इंडिकेटर मिलता रहता है, वो आपको फर्दर मोटिवेट करता है। अच्छा, मैंने इतना कर लिया, मैंने 30% कर लिया, ओके सिर्फ 70% और करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेस बार है ये भी एक गेमिफिकेशन का ही एलिमेंट है। ठीक है, जो हमने गेम से उठाया हुआ है अपनी नॉन गेमिंग एक्टिविटी के लिए। लास्ट में आ जाती है सर्टिफिकेशन की बात। ऑफकोर्स जैसे जब भी आप कोई ऑनलाइन कोर्स करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, एंड दिस सर्टिफिकेट इज मोर देन जस्ट अ रिवॉर्ड, मोर देन जस्ट अ स्कोर। यू आर एक्चुअली सर्टिफाइंग कि उसने वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये भी एक गेमिंग का ही एस्पेक्ट है कि आप एंड में उसने जब सब कुछ काम कर लिया है, जब सारा कोर्स खत्म कर लिया, तो उसको आप एक सर्टिफिकेट अलॉट कर सकते हो। ठीक है, नाउ द थिंग इज मोटिवेशनल मैकेनिक्स में ही हम बात करेंगे कि जो बहुत जनरल है, जो जिसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, कि किस तरीके से हम डे टू डे टीचिंग में गेमिफिकेशन टेक्निक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और किसके साथ, पावर पॉइंट के साथ। ठीक है, तो पावर पॉइंट के साथ गेमिफिक अगर आपको कोई गेम बनानी है, तो लेट्स से एज्यूम करते हैं हमें कोई क्विज गेम बनानी है। ठीक है, तो क्विज गेम बनानी है पावर पॉइंट के अंदर, तो आप दो तरीके से बना सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन यूज द नेविगेशन लिंक्स इन पावर पॉइंट। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा दूंगी। एंड अदर इज यू कैन यूज classpoint.io। ये भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप classpoint.io एड ऑन को पावर पॉइंट के साथ इनकॉर्पोरेट करके किस तरीके से आप एक जो इंगेजमेंट है क्लास में उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन। अगर इस थियोरेटिकल वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो दे कैन डायरेक्टली अनम्यूट, अदरवाइज आई जस्ट गो अहेड। आई थिंक इट वाज बाय मिस्टेक। तो सपोज हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा, राइट, क्वेश्चन 1। सो लेट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग, अज्यूमिंग कि हम इसी टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, इज अ गेम एलिमेंट, है ना। अभी हमने पढ़ा है कि कुछ गेम एलिमेंट्स होते हैं, तो इस तरीके से आपने कोई क्वेश्चन बना दिया और यहाँ पे आपने आंसर्स डाल दिए, एंड इंस्टेड ऑफ द बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पे एबीसी भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से बैजेस, ठीक है, बुलेट्स, व्हाट एल्स, ग्रेड्स, नन ऑफ दीज। लेट्स से इस तरीके से आपने कुछ ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि अब उसके इंगेजमेंट के लिए, सपोज कल को आप पावर पॉइंट पे शेयर भी करते हो या डायरेक्टली यहाँ से आप सपोज क्लास में हो अभी, राइट, क्लास में आपने ये डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट से पूछ के खुद ही उनका फीडबैक लेके आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर उन्हें एक पाथ पे लेके जाना होगा। बेसिकली उसे कहा जाता है डिफरेंट ब्रेक थ्रूज इन एजुकेशन, की आपको इस पार्ट से इस पार्ट पे लेके गए। अगर आपको नहीं आता तो मे बी टेक्स यू टू द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। सपोज दिस इज रेलेवेंट टू माय रिसर्च टॉपिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल माइट ऑलरेडी बी नोइंग। एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद वी विल जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसके साथ जाएंगे। लेट्स से आई से इंटेलेक्ट थिंग्स, so where did I go in the presentation, oops that it's a wrong answer, then if I click on go back I'll come back to my question। मतलब ये बेसिकली एक फीडबैक बेस्ड हो गया ना, और जहाँ पे भी इंगेजमेंट आ गई स्टूडेंट की, वहां पे फीडबैक भी मिल गया उसको कि उसका आंसर गलत है। उससे क्या होगी, उससे जो रिटेंशन पावर है स्टूडेंट की वो बढ़ जाएगी। इंटरनेट ऑफ थैंक्स, अगेन इट्स अ रॉन्ग आंसर, गो बैक। IP थिंग्स, अगेन इट्स अ रॉन्ग आंसर, गो बैक। व्हेन आई क्लिक ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स then it is going to give me yes that's the correct answer and click here to go to the next question। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये करना कैसे है ये आई विल एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। सपोज एक क्वेश्चन हमने बनाया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गेम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बैजेस पे जाना है, यू हैव टू सिलेक्ट बैजेस। ठीक है, सॉरी, यू हैव टू सिलेक्ट बैजेस, राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, हाइपर लिंक पे। ठीक है, हाइपर लिंक पे करना है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, वेदर यू वांट टू लिंक इट टू एग्जिस्टिंग वेब पेज, और इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कहीं पे प्लेस चाहिए तो आप वहाँ पे लेके जा सकते हो। ठीक है, अभी हमने कोई इसका करेक्ट आंसर वाली जो है एक स्लाइड हमने बनाई हुई है, हम उस पे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। we'll just see कि वो कौन सी स्लाइड है जिसमें हम उसको बता सकते हैं कि ओके यू नो दिस इज द करेक्ट आंसर। यस,
तो इस जब भी वो बैच पे सिलेक्ट करे बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर, वो उसको वहां पे ले जाए, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, तो ये पावर पॉइंट में एक हैक होता है कि जो आपका जो हाइपरलिंक्स बन जाते हैं वो एक पर्टिकुलर कलर के हो जाते हैं। अगर आपको उस कलर से हटाना है तो व्हाट यू डू इज यू गो टू कलर्स, यहाँ पे हो डिजाइन टैब में जाके यू गो टू कलर्स, कस्टमाइज कलर्स, और ये जो हाइपरलिंक और फॉलोड हाइपरलिंक है ना, इसको ब्लैक कर दो, ठीक है। ब्लैक कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, इफ आई गो टू स्लाइड शो मोड, कैन यू सी, अब ये एक हाइपरलिंक बन गया है, ठीक है। लाइकवाइज अब बुलेट्स, अगर बुलेट्स वो सिलेक्ट करता है, बुलेट्स पे अगर वो क्लिक करता है तो हाइपर लिंक पे जाना है, ठीक है। रॉन्ग आंसर वाली को आपको इसको एज अ ऐड कर देना है, उप्स इट्स अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगेन ग्रेड्स इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर, इस पे राइट क्लिक करके हाइपर लिंक पे जाना है एंड यू वांट टू रीडायरेक्ट इट टू विच स्लाइड, दैट इट्स अ रॉन्ग आंसर, राइट। अगेन नन ऑफ दिस इज अ रॉन्ग आंसर, तो हाइपर लिंक पे जाके अगेन वील सेलेक्ट उप्स इट्स द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये तो बेसिकली नेविगेशन लिंक्स या हाइपर लिंक्स को यूज करके एक तरीके से आपने एक छोटी सी क्विज गेम बना दी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं आप सबसे पूछूंगी ओके टेल मी व्हाट इज द आंसर, सम ऑफ यू माइट, अब रियल क्लासरूम सेटिंग में तो आप सुन सकते हो कि यू नो ज्यादा बच्चे क्या आंसर करें, सपोज यू सेड ग्रेड्स, नो इट्स द रॉन्ग आंसर, है ना, तो ये गलत जगह पे आ गया। तो दिस इज बेसिकली यू हैव टू टेक द फीडबैक विद इन द क्लास, जैसे आपने 4 से 5 स्लाइड्स आपने अपनी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा दिया, और उसके बाद क्विकली यू हैव अ शॉर्ट 1 और 2 शॉर्ट क्विज, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसी तरीके से स्लाइड पे आपने प्रेजेंट कर दिया, और एक रिकैपिटुलेशन टाइप में हो जाएगा कि स्टूडेंट्स ने कितना रिटेन किया जो आपने पढ़ाया है, ठीक है। अगर उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है तो उनके उनके सामने ही आप क्लिक करके ये दिखा सकते हैं कि यस दैट्स द करेक्ट आंसर, एंड देन यू मे गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर बैजेस पे उसने सही जवाब दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए उसके बाद आपने उसी स्लाइड को नेविगेशन लिंक के साथ कनेक्ट कर देना है। इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन की कैसे नेविगेशन लिंक के थ्रू किया? सपोज एक और क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिक कैन बी स्केल टू एनी एक्सटेंट? तो एनिमेटेड ये आंसर नहीं है, नन ये आंसर नहीं है, स्केलर यस ये करेक्ट आंसर है। इसमें आप जो भी डिजाइनिंग देना चाहो, ऑलरेडी आपकी क्लास हो चुकी है किस तरीके से पावर पॉइंट्स को इफेक्टिव तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो कि इफ इट इज द करेक्ट आंसर टेक मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो क्लिक, यस एनी क्वेश्चन शिल्पा मैम? हेलो, हाँ या मैम। हाँ जी, मैम, ये जो आपने करेक्ट आंसर गो बैक वाला जो है, वहां पे भी आपने हाइपरलिंक ही डाली हुई है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाइपरलिंक डालिए, मैं अभी करके दिखा देती हूँ आपको। हाँ। हाँ जी, तो बेसिकली जैसे हमने रॉन्ग आंसर दिया, ये गो बैक वाला जो हमने यहाँ पे डाला है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। एक बारी हम करके देख लेते हैं कि एक स्लाइड आपने ये बनाई हुई है, यहाँ पे जस्ट इंसर्ट सम टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गो बैक, मेक इट वाइट बिकॉज वो रेड के ऊपर ब्लैक थोड़ा कम नजर आएगा, थोड़ा बड़ा बना के। अगेन इसको भी राइट क्लिक करके हाइपरलिंक करना है, जैसे कि अभी शिल्पा मैम ने कहा, और किधर लेके जाना चाहते हो, गो बैक। तो आपका क्वेश्चन 25 नंबर स्लाइड पे है जो हमने अभी बनाया है, तो ये वाला स्लाइड है, यहाँ पे आपको स्लाइड प्रीव्यू भी मिल जाएगा एंड यू क्लिक ऑन ओके, राइट। तो अब बिकॉज ये हमने देखो, अब यहाँ पे कैच है कि यहाँ पे ये ब्लैक क्यों हो गया, द रीजन इट वेंट ब्लैक इज, दो हमने इसको व्हाइट किया था बिकॉज हाइपर लिंक को हमने यहाँ पे पूरे पावर पॉइंट के अंदर एक ही कलर का कर दिया। सो दिस यू हैव टू कंसिडर जब भी आप डिजाइनिंग वाला एस्पेक्ट कर रहे हो, कि हाइपरलिंक अब अगर मैं व्हाइट कर दूंगी तो उस पेज पे मुझे व्हाइट हाइपरलिंक्स नहीं नजर आएंगे जहाँ पे मेरा एक्चुअली में क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके की कलर स्कीम रखनी है कि आपका हाइपरलिंक जो है वो एक ही कलर में हर जगह पे सूट करे, राइट। So let's say if I'm on this question, if I click on grades, then go back. Again, I'm on this particular question. Okay, none of these. Go back. Bullets is again wrong. Badges, it's the correct answer. और फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन का हाइपरलिंक दे सकते हो, और देन यू कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेविगेशन लिंक्स के साथ एक बेसिक क्विज गेम क्रिएट कर सकते हो, हाइपरलिंक्स दे दे के विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, to actually get some feedback from your students while you are teaching in your classroom, ठीक है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट आता है इसके अंदर आता है वो क्लास पॉइंट वाला आता है। सो आई विल जस्ट गो टू माय गूगल क्रोम, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। सो बेसिकली आप यू कैन डायरेक्टली गो टू गूगल सर्च, right, and then write down there class point, ठीक है। Sorry, it was class point, ठीक है। You can also make a note of it
class point, which is one of the student engagement tools in PowerPoint. Okay, इस tool को demonstrate करने से पहले मैं I would request all of you कि मुझे यहाँ पे थोड़ी आपसे interactivity चाहिए होगी. मैं आपको एक class code दूंगी. I request all of you कि उस class code को आप class point पे जाके join करें. वो मैं बता दूंगी कि कैसे करना है. मैं भी यहाँ से एक different window से join करूंगी, but I would also be really happy if you give some responses. तो क्लास पॉइंट पे जाके बेसिकली रिसोर्सेज पे हमें जाना है, ये हमें डाउनलोड करना है, ठीक है. तो डाउनलोड सेंटर में जाके यू हैव टू डाउनलोड इट फॉर विंडोज, ठीक है. तो विंडोज पे डाउनलोड करके तो बेसिकली ये मैंने सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल किया है आज ही सुबह, क्लास पॉइंटर सेटअप. पहले तो ये समझ लीजिए कि नॉर्मल इंस्टॉल, कुछ नहीं करना, क्लिक क्लिक करके यू जस्ट हैव टू डाउनलोड. उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के स्टेप्स भी बहुत ईजी हैं, बस आपको एक लॉगिन बनाना है, ठीक है. तो अब जब इंस्टॉल करोगे ना तो ये कहेगा आपसे यू हैव टू क्लोज द पावर पॉइंट बिफोर कंटिन्यूइंग. तो हमें पहले अपने एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट जो विंडो है, जो इंस्टेंस है जो खुला हुआ है, उसको बंद करेंगे, ठीक है. वील सेव इट एंड इंस्टॉल. अब इंस्टॉल करते हुए भी इंस्टॉल करने के लिए कोई हमें सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब हम इसको पावर पॉइंट में यूज करना चाहेंगे ना, तब हमें एक लॉगिन की जरूरत होगी. तो बेसिक इंस्टॉलेशन होगी, बस अभी जितनी देर में मैंने बात की उतनी देर में इंस्टॉलेशन होगी. एंड व्हेन आई से लॉन्च क्लास पॉइंट, तो वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट ओपन कर देगा. ये वो मेरे लेक्चर वाली पावर पॉइंट नहीं है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे अपना एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि किस तरीके से. आई जस्ट गो टू स्लाइड शो मोड. तो क्लास पॉइंट टूल में किस तरीके से आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि पहले साइन इन कीजिए, फिर इस टैब में आ जाएगी. ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से इंटरैक्टिविटी बढ़ जाती है क्लास के अंदर, गेमिफाइड लर्निंग हो जाती है, क्विजेस बन जाते हैं, इंटरैक्टिव क्विजेस हो जाते हैं. ऑफ कोर्स जब गेमिफाइड लर्निंग की बात हो रही है, ये मैं आपको बेसिक पहले ही दे चुकी हूँ कि वहाँ पे बात हो रही है कुछ पॉइंट्स की, कुछ स्टार्स की, कुछ बैजेस की, है ना. यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की. और इसके अंदर क्लास पॉइंट भी हमें एक लीडर बोर्ड बना के दे देता है पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का, कि मतलब एक फ्रेंडली कंपटीशन को स्पार्क करने के लिए एक लीडर बोर्ड भी बना के देता है. अदर अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरैक्टिव क्विजेस सिर्फ मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक वर्ड क्लाउड करके भी एक जो एक क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है. यू कैन ऑल्सो हैव फिल इन दी ब्लैंक्स, यू कैन ऑल्सो पुट एन ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा. अब सपोज जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज दी रेड प्लैनेट. ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक उसकी तरह दिया हुआ है, एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह दिया हुआ है कि मतलब सपोज आफ्टर दिस लेक्चर ऑल्सो कि अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप इस ट्यूटोरियल को यूज करके कर सकते हैं. बट अभी हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है. एंड वील गो टू द पावर पॉइंट, बैक टू आवर पावर पॉइंट. अब जब आप पावर पॉइंट का इंस्टेंस खोलेंगे तो अब आपको यहाँ पे तो अब जब आप पावर पॉइंट का इंस्टेंस खोलेंगे, मेरे को दोबारा ओपन करना पड़ा, आपको यहाँ पे एक न्यू टैब मिल जाएगा विच इज द इंक नो क्लास पॉइंट, ठीक है. ये पहले यहाँ पे फीचर नहीं था, ये यहाँ पे जो लास्ट टैब था वो सिर्फ व्यू टैब तक ही था, व्यू ऑप्शन तक ही था. अब यहाँ पे जब आपने उसको इंस्टॉल कर लिया तो आपके पावर पॉइंट के साथ ऑटोमेटिकली वो एक एड ऑन ऐड हो जाएगा, इंक नो क्लास पॉइंट, ठीक है. लेकिन अभी यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव माई अकाउंट लॉग्ड इन. लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है तो अगर आपको लास्ट लेक्चर में आई थिंक डिस्कस हुआ था, 10 मिनट मेल के बारे में डिस्कस हुआ था, तो उसको यूज करके भी आप अकाउंट बना सकते हो. बेसिकली ये जो अकाउंट है ये मेरा मतलब पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं बनाया गया है, तो आप कोई भी 10 मिनट ईमेल यूज करके, जैसे इस तरीके से यहाँ पे जो भी 10 मिनट ईमेल आपके साथ आइडियाज डिस्कस हुए थे उसको यूज करके आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो क्लास पॉइंट पे, ठीक है. यहाँ पे साइन अप पे जाके, जब आप साइन अप पे जाओगे वो आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा, आपका नेम मांगेगा एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, और आपने कहाँ से क्लास पॉइंट के बारे में सुना. ये सारी चीजें, बेसिक चीजें लेने के बाद उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो. तो करंटली आई एम लॉग्ड इन, ठीक है. तो मैं ये बोल रही हूँ कि लॉगिन करने के लिए क्लास पॉइंट पे आपको यू डोंट नीड योर पर्सनल ईमेल आईडी, आप अपना 10 मिनट ईमेल के साथ भी यू कैन ऑल्सो वर्कआउट, ठीक है. सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट न्यू स्लाइड, ठीक है. यहाँ पे हम न्यू स्लाइड की बात करते हैं. क्वेश्चन हम यहाँ से वो एक ले लेते हैं. what is your opinion of the current STC? Suppose, what is your opinion of the current STC? ठीक है. सो इसको मैं एक वर्ड क्लाउड बनाना चाहती हूँ, ठीक है. तो मैं अपने इंक नो क्लास पॉइंट से वर्ड क्लाउड पे सेलेक्ट करूंगी. यहाँ पे एक वर्ड क्लाउड वाला क्वेश्चन मैंने बना दिया है. इसमें मैं अब आपकी ओपिनियंस को इकट्ठा करूंगी.
ठीक है, तो यहाँ पे आपके राइट साइड में इंक नो क्लास पॉइंट से रिलेटेड आपको पूछ रहे हैं वो कि हाउ मेनी, मतलब एक स्टूडेंट, एक पार्टिसिपेंट कितने सबमिशंस दे सकता है, कितने ओपिनियंस दे सकता है करंट एसटीसी के। सो यू कैन मैक्सिमम अप टू 5, उसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक ऑप्शंस है, वेदर यू वांट टू स्टार्ट द एक्टिविटी विद स्लाइड। बेसिकली अभी ये एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है, जैसे ही मैं स्लाइड शो मोड में जाऊंगी ना तब ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद वी विल यू नो शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्लाइड शो मोड में जाती हूँ, ठीक है, ये जो ये नीचे आपको यहाँ पे सारे टूल्स नजर आ रहे हैं, एनोटेशन के टूल्स हैं, जिस तरीके से इरेजर है, शेप्स हैं, वेरियस शेप्स आप डिजाइन करना चाहते हो, सपोज इस तरीके से कोई भी शेप आप डिजाइन करना चाहते हो तो ये एक एनोटेशन का भी टूल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कंट्रोल जी इफ आई डू, इरेजर को यूज करके मैं इसको इरेज भी कर सकती हूँ। सो यहाँ पे जो आपको राइट साइड पे क्लास कोड नजर आ रहा है ना, तो इस सेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एक बार क्लास पॉइंट पे जाएं, विच इज 67322। आई विल ऑल्सो डू इट साइड बाय साइड। ये मेरा इनकॉग्निटो मोड में एक टैब है, बिकॉज मैं अपने बेसिक उससे करूंगी, सो इट विल रिलेट मी टू माई करंट अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ज्वाइन अ क्लास, लॉग इन और साइन अप के ही लेफ्ट साइड में देयर इज ऑप्शन ऑफ ज्वाइन अ क्लास। उस पे जाके मुझे अपना वो क्लास कोड देना है। सो क्लास कोड इज 67322। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू इफ यू कुड डू, एक बार क्लास पॉइंट बेसिक लिखना है गूगल पे और वहां पे जाके यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन अ क्लास, और उसमें यू कैन पुट इन दैट क्लास कोड। साइड बाय साइड आप भी कर लीजिए और आपके सामने वो क्वेश्चन अपीयर होगा, और जो नहीं कर सकते दे कैन लुक हैव अ लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द स्क्रीन दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। Let's wait for it to open. अगर किसी ने कर लिया है तो दे कैन ऑलवेज अनम्यूट एंड टेल मी। जैसे इस तरीके से आपके सामने खुलेगा, ठीक है। सो क्लास कोड इज दिस थिंग, आई नीड टू चेंज द क्लास कोड। I was already doing it. What was the class code? The class code is okay. Somebody is all, 3 participants already there. 67322. ऑप्शन देने के लिए वहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर क्या है? नहीं नहीं सर, यहाँ पे जैसे अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी, व्हाट्स योर, ओके आई हैव टू ओपन इट द क्विज, 1 सेकंड सर। वर्ड क्लाउड, यस, नाउ यू कैन डू सर। अब वर्ड क्लाउड पे मैंने क्लिक किया, सो इट इज नाउ वेटिंग फॉर द कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेज पे आ गया। तो इफ आई गो, सो आई एम ऑल्सो टाइपिंग इट, लेट्स से interesting is one of the feedback, ठीक है। तो if I go to my class point, PowerPoint, यहाँ पे मुझे एक वर्ड आ गया इंटरेस्टिंग, और ये 1 भी आ गया कि ये किसने रिस्पॉन्स दिया है। राइट, एक्सीलेंट इज अगेन देयर। व्हाट इज, हु इज दिस, ओके, गणेश सर हैज गिवन। तो ये भी आप देख सकते हो क्लास में। ये तो बेसिकली एक वर्ड क्लाउड के हिसाब से था, इट इज इंटरैक्टिव, राइट, इंटरेस्टिंग, ओके। तो इस तरीके से आप एक क्लास के अंदर जो फीडबैक है वो बच्चों का ले सकते हो एक वर्ड क्लाउड के उससे। तो म्यूजिक भी, इफ यू कैन लिसन, म्यूजिक भी चल रहा होगा, उस म्यूजिक को आपको नहीं चाहिए तो यू कैन ऑलवेज क्लोज। रिस्पॉन्सेज में आप जाके देख सकते हैं कि आउट ऑफ इस एसटीसी में भी अभी काफी पार्टिसिपेंट्स हैं। नाउ वी हैव 6 पीपल, बट 4 पीपल हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। लाइव स्टेटस आप चेक कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स शिल्पा मैम इज देयर, सुंदर सर इज देयर, गणेश सर इज देयर, अगेन मेघा मैम इज देयर। तो इस तरीके से आ सकते हैं पेंडिंग जो अभी कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड क्लाउड वाला लाइव स्टेटस अगर आप चेक करें तो ये है सबमिटेड वी हैव 5, राइट। रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्सेज वाला आए है तो ये देख सकते हो किसने 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 रिस्पॉन्स कर दिया है। तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, और जिन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है उनके आंसर्स जो है, ओके। और अगर 2 ने एक्सीलेंट दिया है, ऑफ कोर्स एज यू नो कि वर्ड क्लाउड की थ्योरी क्या होती है, तो 2 लोगों ने एक्सीलेंट दिया है तो उसका जो साइज है उस पर्टिकुलर वर्ड का वो बड़ा हो जाएगा, राइट। इंटरेस्टिंग, अगेन आई होप मैंने थोड़ा पॉइंट क्लियर किया। तो ये तभी होगा जब आप स्लाइड शो मोड में जाओगे और क्लास पॉइंट पे स्टूडेंट्स के पास, ऑफ कोर्स सबके पास आजकल फोन होता है, तो वो क्लास में जाके जब इस कोड से ज्वाइन करेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट के ऊपर बहुत सारे आगे, एक्सीलेंट सेशन, ठीक है। तो कोई भी मतलब इस तरीके का आप वर्ड क्लाउड क्रिएट करना चाहते हो तो दैट यू कैन डू। अदर्स इफ यू आर ट्राइंग टू डू, we'll wait for you, we'll have a look at the responses, एंड ऑफ कोर्स अभी कोई पेंडिंग नहीं है। तो 8 लोगों ने ही ट्राई किया और 8 लोगों ने सबमिट कर दिए अपने रिस्पॉन्सेज। तो इस रिस्पॉन्सेज को मैं हटाऊंगी। सो दिस इज द रिस्पॉन्स on my question. And what was the question? The question was, what is your opinion? I can just scale it down a bit. What is your opinion of the मैम current? क्लास कोड क्या है इसका? मैं डाउनलोड कर रहा था, क्लास कोड बता दीजिए। सर क्लास कोड है 67322। 67322। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी सर। तो लाइक अगेन वी हैव 9 रिस्पॉन्सेज नाउ। तो धीरे धीरे जिस मैम तरीके,
हाँ जी सर. Ma'am, I would like to know how to bring it from in a PPT, because I have used ChatGPT also there. How to go to PPT and then bring this class point. Okay. So sir, what I have done is, this is the slideshow mode of my PowerPoint, right? है ना? तो उसको मैंने Okay. पावर उस सपोज दिस वाज माय नॉर्मल स्लाइड शो, ठीक है. यहाँ मैंने व्हाट इज योर व्हाट आई Okay. कैन डू फॉर यू सर इज, मैं एक बार दोबारा से कर देती हूँ सो दैट एक सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए, और जो करंट वर्ड क्लाउड चल रहा है इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है. दैट विल बी इजियर, ताकि सब रिकैपिटुलेट कर पाए. आई एम क्लोजिंग द सबमिशन, सो थैंक यू ऑल द 9 पीपल हु हैव एक्चुअली रिस्पोंडेड टू दिस वर्ड क्लाउड. आई एम क्लोजिंग द सबमिशन, ठीक है. हाईलाइट टॉप आंसर्स. तो टॉप आंसर क्या था? एक्सीलेंट, जो मतलब 2 लोगों ने दिया ऑफ कोर्स इन व्हाटएवर रिस्पांसेस वी हैड. एंड अवार्ड स्टार्स टू ऑल. तो यू कैन सी आपके जो आपका जो पोर्टल होगा जहाँ पे आपने मतलब जाके रिस्पॉन्ड दिया होगा, तो जैसे मुझे यहाँ एक स्टार मिल गया, आपको भी शायद एक स्टार मिल गया होगा, ठीक है. तो एंड में इसी तरीके से एंड में बच्चे अपने स्टार्स को कंपेयर कर सकते हैं. एक लीडर बोर्ड भी बन के आ जाएगा क्लास के एंड में, एक ही क्लास के एंड में, कि किस बच्चे को कितने पॉइंट्स मिले हैं. बट अभी मैं इसको करने से पहले, हाँ, मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि किया क्या है हमने इसके अंदर, ठीक है. बेसिकली हमने क्या किया है, जस्ट डिलीट दिस स्लाइड, एक न्यू स्लाइड क्रिएट किया है हमने. इसमें जो भी हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अज्यूमिंग, मुझे नहीं पता कि हाउ मेनी, बट दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, है ना. सपोज ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें वर्ड क्लाउड नहीं हो पाएगा. वर्ड क्लाउड के लिए व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन देन, वो थोड़ा इजी रहेगा, उससे आप रेफर कर पाओगे. आई हैव कंट्रोल Z, इसको हटा देती हूँ. सपोज अभी आपने अपनी स्लाइड में क्या किया है, एक ये क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द करंट एसटीसी और द करंट सेशन, ठीक है. ये वाली चीज आप यहाँ से हटा सकते हो. अब आप जाओगे, ये जो ऊपर टैब है इंक नो क्लास पॉइंट, ठीक है, जो क्लास पॉइंट के फीचर्स हैं, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वर्ड क्लाउड चाहिए, है ना. तो वर्ड क्लाउड पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये वर्ड क्लाउड अपने आप यहाँ पे आ जाएगा. अभी आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या करना है. जैसे कि मैंने जब ये एक्टिविटी स्टार्ट की, तब एक पार्टिसिपेंट ने कहा भी था कि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे. तो रिस्पॉन्ड और क्लास कोड तभी आएगा जब आप पावर पॉइंट मोड में जाओगे, समझ गए. तो बेसिक यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं कि आप कितने सबमिशन अलाउ करते हो पर स्टूडेंट. तो सपोज आप चाहते हो कि वो एक ही आंसर करे, तो एक ही सबमिशन अलाउ करनी है. जैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी विद स्लाइड, जैसे ही मैं स्लाइड शो मोड में जाऊंगी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी. मिनिमाइज एक्टिविटी विंडो आफ्टर एक्टिविटी स्टार्ट्स एंड ऑटो क्लोज सबमिशन, की सपोज कुछ टाइमर है, लेट्स से आई एम गिविंग अ टाइमर ऑफ 40 सेकंड्स, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. अब जैसे ही मैं स्लाइड शो मोड में जाऊंगी, कैन यू सी, मेरे पास ये क्लास पॉइंट के नीचे टैब भी आ गई है, और सेम क्लास कोड के साथ अगर आप देखेंगे उस वहीं पे ही जाएंगे. एक मिनट, या ठीक है. अब ये हो गया टाइमर, सेम क्लास कोड में 9 रिस्पोंडेंट्स हैं. अब आप जाके देखिए अपने उस पे, आपको फिर से सेम क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा. तो यहाँ पे मैं यहाँ इस तरीके से टाइमर डिस्प्ले हो रहा है. आई शुडंट हैव डन द टाइमर इसमें, बट चलो 40 सेकंड्स में आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है, 2 लोगों का शायद आ गया है. तो गुड, नाइस. ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हैं. और अगर आप कुछ ग्रेस पीरियड देना चाहते हैं, कुछ 15 सेकंड्स और देना चाहते हैं, तो प्लस 15 सेकंड्स आप कर सकते हैं. तो ये तभी स्टार्ट होगी एक्टिविटी जैसे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. अभी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस पे 2 है, तो प्लस 15 सेकंड्स करके आप टाइमर को बढ़ा सकते हो, उससे फील कि अभी बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से नाइस पे वी हैव 2, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरीके से बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन डू. तो मैं भी यहाँ से जाके, जैसे आप सब लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो सपोज आई से नाइस, तो मेरे वाला जो रिस्पॉन्स है नाइस, वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है. रिस्पॉन्सेज अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे वो डिस्प्ले करेंगे कि कौन से बच्चे ने रिस्पॉन्ड कर दिया है, राइट. or you can just go to live status again. These 8 people have responded and 1 is pending, so maybe that participant या student अभी respond कर रहा है. इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है. लाइव स्टेटस, और ये क्लास कोड हर बारी मतलब एक इसके सेशन के अंदर तो यूनिक होगा, बट एवरी टाइम यू ओपन द पावर पॉइंट एंड गो टू क्लास पॉइंट, आपको न्यू मिलेगा, एक यूनिक क्लास कोड मिलेगा जिसे आप शेयर कर सकते हो. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज जस्ट 5 डिजिट नंबर, उससे पार्टिसिपेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है. Sorry. So as you can see, 9 people have responded. Right? We have 4 nice. So word cloud आप इस तरीके से बच्चों से रिस्पॉन्स ले सकते हो, ठीक है. सो अभी मैं 15 सेकंड्स ऐड नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट डायरेक्टली गो अहेड एंड क्लोज द सबमिशन, ठीक है. क्लोज कर दी सबमिशन. मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ टॉप आंसर्स क्या है. नाइस एंड गुड वर द टॉप आंसर, जो भी हमने अभी डिस्कस किया.
क्लास में जो भी आप डिस्कस कर रहे हो तो बच्चों के रिव्यू लेना चाहते हो कि क्या उन्हें किसी टॉपिक के बारे में पता है, कभी सुना है, नहीं सुना है। तो बेसिकली फीडबैक बेस्ड मैकेनिज्म पे हमने ये करना है। और अगर ये जो रिस्पॉन्स आया है आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक स्लाइड की तरह अपने पावर पॉइंट में, करंट पावर पॉइंट में इंसर्ट भी करना चाहते हो तो आप इंसर्ट एज स्लाइड पे क्लिक कर सकते हो। वो जो स्लाइड के ऊपर आपका वर्ड क्लाउड सबमिशंस जो है वो सारे के सारे एज अ स्लाइड भी आपके पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि सपोज एक हफ्ते में आपने एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो एक रिवीजन देने के लिए कि हमने ये रिस्पॉन्सेज आए थे लास्ट टाइम, तो उसको आप एक स्लाइड की तरह भी रख सकते हो, ठीक है। और यू कैन शेयर इट, यू वांट टू शेयर इट, यू कैन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, एक लिंक के थ्रू आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मेल के थ्रू भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अवार्ड्स स्टार्स टू ऑल, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ड क्लाउड तो वाज लाइक ठीक है, इसके अंदर कोई करेक्ट और रॉन्ग आंसर नहीं होता है। वर्ड क्लाउड के अंदर आप जो भी रिस्पॉन्स देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो क्रॉस है इसका मतलब है दैट एग्जिट द स्लाइड शो, तो मैं स्लाइड शो को भी बंद कर दूंगी, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा कि आपको भी ये नजर आने लग जाएगा कि दैट द प्रेजेंटर जो क्लास कोड में आप हो वो अभी स्लाइड शो मोड में नहीं है, एंड करेंटली आपके पास 2 स्टार्स होंगे आप सबके पास, बिकॉज हमने 2 बारी एक्टिविटी कर ली है वर्ड क्लाउड वाली, तो हाँ ठीक है, करेक्ट। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये स्लाइड की तरह उन्होंने इंसर्ट करके हमें दे दिया। लेट्स गो अ न्यू स्लाइड। अब हम स्लाइड के लेआउट को इस तरीके से कुछ करके, सपोज इट्स क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द, क्विकली मैं ये थोड़ा सा आपको बताती हूँ, फुल फॉर्म ऑफ www, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें इसको डिलीट कर देना है एंड देन वी गो टू इग्नो क्लास पॉइंट और एक मल्टीपल चॉइस पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे जब आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी देता है कि किस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बट हम थोड़ा बेसिक तरीके से बनाएंगे, थोड़ा ज्यादा डिजाइन करने की, डिजाइन एस्पेक्ट जो है वो आपके अपने ऊपर, आप कितना सुंदर उसको बनाना चाहते हो। तो ट्यूटोरियल को आप स्किप भी कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस हमारे पास जैसे ही आ गया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में आपको कितने ऑप्शंस चाहिए? 4 ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं कि नहीं, हैज करेक्ट आंसर्स कौन से हैं वो, राइट। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, Assess participants in real time with quick interactive. So it comes under quiz mode. Start activity with 1 second. Earlier I think it was free with this with the account that we created. Let me just see that this quiz mode is now under paid mode, I guess. So if I watch the tutorial, Assess participants in real time. so कुछ जो इनके fill in the blanks है, ऑडियो रिकॉर्ड है, वीडियो अपलोड है, ये सारे इनके जो फीचर्स हैं, ये बेसिकली okay, so this is what we have to do, correct. So we have to give the answers here as well. A is World Wide Web, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाला feature is available in the free version, World Wide Web. You give the options here only, in PowerPoint only you have to write. B is let's say World Wide Width, assuming any option, and then World War Web. Let's say we have 3 options, ठीक है, and allow selecting multiple options नहीं करेंगे. Has correct answer, and what is the correct answer? A is the correct answer for this, right? तो ये सब, ये 40 seconds, let's take it to 50 seconds, ठीक है, and let's go to the PowerPoint mode. Clearly now अब आपके सामने सेम क्लास कोड में 67322 के साथ आपके सामने ये वाला क्वेश्चन विजिबल होगा. काइंडली कंफर्म अगर आपके सामने ये सेम क्वेश्चन अपीयर हो रहा है 67322 पे. मैं भी चेक कर रही हूँ, राइट? Yes, ma'am. Yeah. So how do you select Yes, the ma'am. option? 1 second. Multiple choice. Okay, now I have started, right? So once you click on that option to start, then only आपके सामने यहाँ options आ जाएंगे A, B, C. So I am giving a wrong answer deliberately. I have clicked on B and then I have submitted. So all of you also can try. ठीक है, मैं यहाँ मेरे पास already यहाँ पे से, okay, that's great. So इस तरीके से आप जिसके सही आंसर्स हैं, of course we'll be giving only points to those students.
अभी सिंस ऑल ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग, सपोज बी किसने रिस्पॉन्ड किया है, मैंने, ये भी आप उस रिस्पॉन्स पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। और किन 6 लोगों ने हु पीपल हैव एक्चुअली चोजन द करेक्ट आंसर, उनको आप स्टार्स दे सकते हो। सो इफ आई क्लिक ऑन अवार्ड स्टार्स टू ऑल, तो सिर्फ ये लोग जो सामने अभी स्लाइड शो पे नजर आ रहे हैं इनको पॉइंट्स मिलेंगे। एंड इफ आई गो टू माय दिस थिंग, आई विल ओनली हैव 2 पॉइंट्स करंटली। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एक्टिविटी में बंद करूंगी मेरे 2 ही होंगे पॉइंट्स, लेकिन जिन 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 सारे पार्टिसिपेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया उनके पॉइंट्स 3 हो जाएंगे, बिकॉज इट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब आपने जब ये करा ली एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, तो इसको चलने भी दे सकते हैं। ठीक है, यू कैन वेट फॉर रिस्पॉन्सेज, या रीस्टार्ट भी कर सकते हैं कि अगर कुछ बच्चे नहीं दे पाए, दे कुड नॉट रिमेंबर, करेक्ट आंसर शो करना है तो आप करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिखा सकते हो। एनी क्वेश्चन? समबडी हैज अनम्यूटेड। या मैम, यस, हमारे एंड पे कहाँ पे स्टार्स दिखते हैं हमको? आपके एंड पे एज ए टीचर मैम, और एज ए स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मैम, ये एक्टिविटी मैं बंद करूंगी ना अभी, सो आई तभी दिखेगा। हाँ जी, आई विल क्लोज द हाँ, एक्टिविटी। ओके ओके ओके, आई गॉट। तो अब आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगेन इफ आई स्टार्ट द एक्टिविटी, इफ आई रीस्टार्ट द एक्टिविटी, तो पुराने रिस्पॉन्सेज डिलीट हो जाएंगे, दैट आई डोंट इंटेंड टू डू, बट आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रीस्टार्ट द एक्टिविटी, और अगेन जो 6 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया वो यू नो इट विल बी डिलीटेड, सो आई एम नॉट रीस्टार्टिंग इट, बट यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो वंस इट इज क्लोज, उसके बाद ही उसको पता चलेगा कि उसका आंसर सही था या गलत था, राइट? अगर अब तक उसके 2 पॉइंट्स और 2 ही हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने गलत आंसर दिया था तो मुझे पता चल जाएगा आई वाज द रॉन्ग, और उसके बाद आप करेक्ट आंसर शो भी कर सकते हो कि यू नो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? इस तरीके से यू कैन हैव इंटरएक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें मैं बंद कर दूंगी, राइट? इस तरीके से ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। देन यू कैन एग्जिट। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी 2 तरीके की गेमिफिकेशन की बात कर ली है हमने, एक पॉइंट्स और एक लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड वाली बात अगर मैं करूँ तो ऑफ कोर्स लीडर बोर्ड वाली बात यहाँ पे मिस हो गई थी। लेट मी अगेन गो टू स्लाइड शो मोड। वेयर इज द क्लास कोड? यस, सो यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है एनोट प्रीवियस नेक्स्ट, तो जो हमारी पावर पॉइंट में प्रीवियस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड होती है वो है। इफ यू वांट अ लेजर, कोई लेजर को यूज करके आप कुछ समझाना चाहते हो, तो बेसिकली टूल्स इरेज करना चाहते हो दिस, बट करंटली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। एआई क्विज एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके अंदर टेक्स्ट, व्हाइट बोर्ड, ये ड्रैगेबल ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो यू कैन ऑलवेज गो टू देयर वेबसाइट, वहाँ बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। एआई क्विज, ठीक है, एआई क्विज एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि सपोज जो भी आपकी करंट स्लाइड में लिखा हुआ होगा ना, उससे रिलेटेड वो एक क्विज बना के दे देगा, एक क्वेश्चन बना के दे देगा। सपोज से सो दिस इज ऑफ कोर्स क्रेडिट बेस्ड, हम एक फ्री अकाउंट से बना रहे हैं, सो 20 क्वेश्चन ही इस तरीके से अलाउड है। तो अगर आपको कुछ प्रो फीचर्स चाहिए या इस तरीके से आपको क्रेडिट बेस नहीं चल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज बाय द लाइसेंस टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टू दिस पर्टिकुलर क्लास पॉइंट। सो जनरेट अ क्वेश्चन, तो अभी जो मेरी स्लाइड में है वो अभी उसको रीड कर रहा है और उसके बाद उसने ये कर दिया। सो आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ये ऑलरेडी क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन ही बना रहा है। ठीक है, कैन यू सी? अभी उसने वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वॉर वाले में उसने वेब लिख दिया खुल दे, इस तरीके से उसने दूसरा क्वेश्चन बना दिया। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड दिस। ठीक है, तो एक बारी हम क्या करते हैं, कंटेंट्स वाली, अगर आप इससे भी खुश नहीं है, यू आस्क इट टू जनरेट अनदर, तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ। तो ये बेसिकली एक एआई बेस्ड फीचर है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अप्लाई, क्या कोई बता सकते हैं ये अप्लाई का मतलब क्या है? यहाँ पे आई थिंक ये अब आपको पता होगा कि अप्लाई क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है ये जो अप्लाई आ रहा है क्वेश्चन के साथ? Madam, on the lighter side, that animation is winking the eyes. Yes sir, नहीं yes sir, that's a question sir, वो that's waiting for your response, उसकी बात नहीं कर रही मैं सर, ये जो राइट साइड पे अप्लाई है। हाँ Lighter side, on the lighter side. ओके ओके ओके, यस सर। So if you don't know, I'll just answer this. Apply means to our PPT, our own PPT. No, It will go. no, it's not clickable, ma'am. It is something to do with the question that is Oh. written. Okay. I would like all of you to take a minute or so to just think what is this apply, which is relevant to the question. It's something to do with the question. Okay. I'll Click just answer and then apply. I'll just go to my class. Somebody has written something in the chat box. Yes, this is the answer that I was looking for. Madhu R is correct. Basically this apply is according to the, so far as I know, I think it's called the Bloom's taxonomy, and what is the level of this question, the apply, I think it's apply, evaluate, remember, something. These are some kind of
levels in Bloom's Yes. taxonomy, which is relevant to each Okay. question. So that is why this Okay. apply is given. So this is another AI Okay. feature. Yeah. So if I click on generate another, so analyze how this has impacted this industry, right? तो उस तरीके से Yes. आपको अपने उससे एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेवल भी मिल जाएगा. अभी हम क्या Okay. करेंगे, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, किसी उस पे जाएंगे जिस पे हमारा टेक्स्ट हो, है ना, तब उससे हमें समझ में आएगा कोई एक बेसिक जहां हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है. लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ गेमिफिकेशन. हाँ, इस पे जाते हैं. अब यहाँ से हम करते हैं एआई, ठीक है, जनरेट कर. देखो 4 क्रेडिट्स यूज कर लिए मैंने, बिकॉज 4 क्वेश्चन में जनरेट कर चुकी थी पिछले उस पे. सो आई क्लिक ऑन जनरेट क्वेश्चन. सो इट इज रीडिंग माय स्लाइड. व्हाट इज द डेफिनेशन, उसका क्वेश्चन उसने बना के दे दिया अपने आप, है ना. इट इज समथिंग टू डू विद रिमेंबर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. ठीक है, चेक द आंसर, कुछ आंसर भी आप चेक करा सकते हैं. ठीक है, राइट. इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली लाके या तो क्लास पॉइंट के साथ इनकॉर्पोरेट करके बच्चों से पूछ सकते हो, या फिर उसी टाइम पे ही कुछ न्यू क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. गेमिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग गेम डैश टू दिस. ठीक है, सो यू चेक द आंसर. इट्स मैकेनिक्स और गेम एलिमेंट्स टू नॉन गेम कॉन्सेप्ट्स, और वो किस लेवल के साथ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ है ना. तो ऑफ कोर्स अब आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा. इस तरीके से मेरे क्रेडिट्स यूज हो रहे हैं. तो दिस प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स. अप्लाई से रिलेटेड, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड आपको अपने जो यहाँ से एआई क्विज है उसके साथ आपको मिल सकता है. ठीक है, देन टाइमर ऑप्शन, कुछ टाइमर आप लगाना चाहते हैं पर्टिकुलर स्लाइड पे. ठीक है, कि सपोज द क्लास स्टार्ट्स इन दिस, या दिस इज द लंच ब्रेक, दिस विल स्टार्ट. तो ये टाइमर है, ये टाइमर जो है इस तरीके से कम होता रहेगा. ठीक है, अदरवाइज अगर आप पावर पॉइंट में एक टाइमर चीज बनाना चाहो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो नहीं होता है. तो अगर आपको कहीं पे टाइमर देना है, कि कोई ऑनलाइन क्लास भी है तो एक टाइमर करना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू, रीसेट भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई स्टॉप वॉच चाहिए. देन वेब सर्च है कि इसके अंदर ही आपको कुछ बेसिकली सर्च करना है. वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो आप नॉर्मल इसको मिनिमाइज करके भी नॉर्मल गूगल सर्च भी कर सकते हो. जो भी आपने इस पे सर्च किया उसको आप इंसर्ट एज स्लाइड कर सकते हो. बेसिकली कुछ सर्च करके आपने स्टूडेंट्स को दिखाया और उसका स्क्रीनशॉट आपको एज अ स्लाइड डालना है फटाफट पावर पॉइंट के अंदर, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है, देन वी हैव क्विक पोल्स. ठीक है, आई कैन स्टार्ट अ पोल फॉर ऑल ऑफ यू. इसी लेवल पे सपोज लेट्स से start a poll, select a poll type, let's say feedback levels. ठीक है, select the number of options, let's say 5, and then start the poll. तो अब अगर मैं जाऊंगी सेम क्लास के ऊपर, ठीक है, क्विक पोल ले रही हूँ मैं आपसे, ABCDE की जगह आप चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. जस्ट गिविंग रैंडम रिस्पॉन्सेज, सपोज लेट्स से A. तो ऑफ कोर्स आप सबने भी दे दिया है, तो ABC, इस तरीके से आप रिस्पॉन्सेज क्विक पोलिंग करना चाहते हो. ABC की जगह आप अपने, कि सपोज आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, सो यू कैन ऑलवेज सी, यू कैन ऑलवेज इंटरैक्ट what is the mindset of your students. ठीक है, कि do you want a 5-minute break, ये भी आप कर सकते हो. yes no जैसे यहाँ पे questions थे. thank you for those who are responding. you can also go and check the live status. these are the people, and again these 3 people, because ये वो उन्हीं 3 लोगों का नाम आ रहा है जिन्होंने क्लास पॉइंट पे जाके क्लास कोड डाला हुआ है. so that is why ये लोग भी जब सबमिट कर देंगे तो टोटल आउट ऑफ दिस लॉट 9 people are responding, 8 participants and 1 me. ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है. ठीक है, लाइव स्टेटस में जाके, एंड देन यू कैन क्लोज द सबमिशन हियर आल्सो. ठीक है, यू कैन क्विकली वांट टू रन अनदर पोल, yes no I'm sure, do you want a 5-minute break, right? इस तरीके से आप पोलिंग भी कर सकते हो. दिस वाज वन ऑप्शन. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज नेम पिकर. सपोज क्लास में से आपको किसी भी, अभी हम क्या करते हैं क्लास में, हम रैंडमली पूछ लेते हैं ना कि ओके आप मतलब रैंडम पिकिंग होती है स्टूडेंट्स की. यहाँ पे अभी बिकॉज मेरी क्लास में 9 स्टूडेंट्स हैं, उन सबका नाम मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो ऑटो पिक भी आप कर सकते हो. सो 1 नेम आई वांट, तो आउट ऑफ द 1 ये ऑटो पिक करके मेरे पास एक नेम आ गया. तो सपोज मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई टास्क देना है कि आउट ऑफ द, या ग्रुप में से एक टीम लीडर चुनना है, तो इस तरीके से यू कैन शो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स ओनली भी आप कर सकते हो. उस तरीके से आप रैंडमली भी पिक कर सकते हो. ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है. कोई 2 नाम चाहिए, पिक 2 नेम्स, तो उसने रैंडमली 2 नाम्स उठा के यहाँ पे हमें दे दिए. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है ना. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो. कार्ड व्यू भी कर सकते हो और व्हील व्यू भी कर सकते हो, राइट? Then you can reset. Yes, so again you have 9 participants. तो ऑटो पिक अगर आपको 3 4 5 6 लोगों का नाम पिक करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, ये भी एक ऑटो पिकिंग वाला भी हमने डिस्कस कर लिया. देन लीडर बोर्ड. अब ये लीडर बोर्ड वाली बात हम आपसे कर रहे थे कि लीडर बोर्ड भी दे रहा है. पॉइंट्स तो दे दिए, लीडर बोर्ड तो अब दिखाना है ना सबको. तो करंट क्लास का रैंक ये है, आई होप यू कैन ऑल सी. ठीक है, किसके कितने स्कोर्स हैं, तो ये लीडर बोर्ड को भी आप स्लाइड की तरह इंसर्ट कर सकते हो. तो इस तरीके से क्या होगा कि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलेगी, स्टूडेंट्स आपके साथ इंगेज करेंगे क्लास में कि मैं भी इसका आंसर सही दूं, है ना.
और अभी आपको ये करंट क्लास का ही मिलेगा, ठीक है। टोटल स्टार्स रैंक जो वाला ऑप्शन है देख सकते हैं, प्रो फीचर के साथ अवेलेबल है, उसमें एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन करंट क्लास रैंक के अंदर आपका जो इस क्लास के अंदर जितने वो मिले हैं वो वाले स्टार्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है। ठीक है, सबने अपने मार्क्स देख लिए, तो इस तरीके से इस लीडर बोर्ड को यूज करके यू कैन हैव मोटिवेशन, मोटिवेशन से आएगी एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से आएगी रिटेंशन, राइट। आई होप इट्स क्लियर। तो ये जो क्लास पॉइंट वाला फीचर था ये आप यूज कर सकते हो, राइट। आई विल जस्ट गो अहेड एंड एग्जिट द स्लाइड शो। यहाँ पे मेरे को आपको ये डिस्कस करना था कि कैसे नॉर्मल नेविगेशन लिंक्स को यूज करके आप क्विज गेम बना सकते हो और कैसे क्लास पॉइंट को यूज करके आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अब दूसरी चीज के बाद, यहाँ पे आई जस्ट क्विकली टेक। हेलो हाँ जी मैम। हेलो मैम, एक बार वो समझ में नहीं आया कि एआई का ऑप्शन कैसे आ रहा है, कहाँ से? हाँ जी मैम, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, जब आप क्लास पॉइंट डाल लोगे ना, तो जब आप क्लास हम्म पॉइंट डाल लोगे तो किसी भी जब आप स्लाइड पे जाके सपोज स्लाइड शो करते हो ना, तो नीचे आपको ये जो बार आ रहा है ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा है ना, तो यहाँ पे आपको एआई क्विज मिलेगा, इस पे क्लिक करो, ये कहेगा कि आपकी करंट स्लाइड को पढ़ के मैं क्विज बना दूं, तो आप कह दो यस जनरेट द क्वेश्चन, फिर वो आपकी करंट स्लाइड को रीड करेगा अच्छा एंड फिर वो उससे क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। एंड ऑफ ओके कोर्स इट इज ओके गिविंग द लेवल, है ना, ठीक है। ओके तो आई, थैंक यू। ओके मैम, इसको मैंने बैक कर दिया। तो इस क्लास पॉइंट वाले एड ऑन को आप जितना खुद से और एक्सप्लोर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इट इज अगेन गोइंग टू एनहांस द मोटिवेशन लेवल। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव मैकेनिक्स के बारे में, यानी कि जहाँ पे अब हमने गेमिंग जो है वो हमारी कॉग्निशन मैकेनिक्स को यूज करके करनी, यानी कि वो ज्यादा रेलेवेंट होएगी, ज्यादा कस्टम होएगी, है ना। ज्यादा इसको आप हाइड करना चाहते हो, ये जो क्लास पॉइंट वाला था ना, इसको आप आए इससे आप हाइड भी कर सकते हो, बिकॉज वो मेरे टेक्स्ट को हाइड कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया। तो ज्यादा कस्टम, ज्यादा रेलेवेंट कौन सी चीजें आती हैं, सिमुलेटर्स और वर्चुअल लैब्स। अब सपोज जैसे कि आज के टाइम में किसी को फ्लाइंग सीखनी है, तो उसके अंदर वर्चुअल सिमुलेटर्स होते हैं, जिसके अंदर जाके आप बैठते हो तो आपको फील होता है कि आप एक एयरप्लेन के अंदर ही हो और उसके अंदर बैठ के आप सीख सकते हो, है ना। वो भी एक तरीके की काइंड ऑफ उसको आप गेमिंग में चेंज कर सकते हो। ऑफकोर्स जब आप एयरलाइन का वर्चुअल पायलट मोड में जा रहे हो तो वहां पे आप गेमिंग के कॉन्सेप्ट से नहीं जा रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसी गेम्स, कुछ ऐसे सिमुलेटर्स डेवलप कर सकते हो जिसके साथ आप जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ऑफ कोर्स ये मोटिवेशनल मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, जो मैंने पहले डिस्कस किया वो सारे स्ट्रीम्स के लोग यूज कर सकते हैं, वो मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। लेकिन जब आप कॉग्निटिव मैकेनिक्स में जाना चाहेंगे, एक बार आपने मोटिवेट कर दिया, फिर कॉग्निशन में आ गए, फिर आपने कहा कि अच्छा ये सिमुलेटर यूज करके देखिए, अच्छा ये वर्चुअल लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट रन करके देखिए, बिकॉज उससे उनकी जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा कस्टम, ज्यादा रेलेवेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। क्विकली मैं अब वर्चुअल लैब वाले पार्ट पे जाऊंगी कि कौन सी वर्चुअल लैब्स हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इंटरनेशनल ऑल्सो, जो आप टीचिंग लर्निंग के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वेबसाइट विच आई विल जस्ट कॉपी द लिंक एंड थोड़ा जल्दी मैं आपको बताऊंगी बिकॉज द टाइम इज लिमिटेड। What are the various ICT initiatives by the Ministry of Education? I'll just copy and paste that link. तो अगर किसी ने पहले मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो दे माइट ऑलरेडी बी नोइंग दिस एस्पेक्ट। आईसीटी इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, कौन सी चीजें आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट इज स्वयं के बारे में सबको पता है, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज हैं, जिनको आप अपनी करंटली जो करिकुलम है उसके साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट्स मिलते हैं इसके हर कोर्स करने पे, और सर्टिफिकेशन के लिए ऑफ कोर्स आपको एग्जाम देना पड़ता है। स्वयं प्रभा जो है, जो नेक्स्ट चीज है, स्वयं के बारे में पता था वो मैंने नहीं बताया। स्वयं प्रभा बेसिकली एक एजुकेशनल टीवी चैनल है, ये भी आप सबके टीवीज पे अवेलेबल होता है। जस्ट यू हैव टू चेक कि कौन सा चैनल नंबर है। स्वयं प्रभा की अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है, inflip.net जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, inflip.net, वो इसको मैनेज करती है। swayamprabha.gov.in अगर ये खुलता है तो आई जस्ट शो यू। यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट मिलता है आपको सारे लेवल्स का। सो कैन यू सी, दिस इज स्वयं प्रभा। किसी भी टॉपिक को आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं। चैनल एंड एलोकेशन हायर एजुकेशन के लिए भी है, स्कूल एजुकेशन के लिए भी है, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। कैन यू सी, यहाँ पे हमारे पास कुछ लेक्चर्स, एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है टीवी पे, ठीक है। अगर वो वीडियो है ऑनलाइन अवेलेबल है तो स्वयं पे है, लेकिन अगर टीवी पे है तो वो स्वयं प्रभा पे है, राइट। अगले इनिशिएटिव पे जब अगर हम जाते हैं तो वो रिलेटेड है जर्नल्स और ई बुक से रिलेटेड। तो बेसिकली पहला इसके अंदर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये सारे हाइपर लिंक्स हैं और आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएंगे। ये वाली वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो
इसी वेबसाइट के थ्रू आप बाकी बाहर वाली सारी वेबसाइट्स पे लिंक करेंगे, विच इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको बुक्स के ई बुक्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट हर जर्नल्स मिल जाएंगे रिसर्च के हिसाब से, या आपको और आगे पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, लोकल लैंग्वेजेस भी, आई मीन द रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, वेदर इट इज बंगाली, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक जर्मन, पर्शियन, इस तरीके की लैंग्वेजेस में भी आपको यहाँ पे जो है वो ई कंटेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पे आप ई कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो मल्टीपल डिसिप्लिन में, राइट। Then we have the EPG पाठशाला, यहाँ पे भी ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगेन यू कैन जस्ट गो एंड रेफरेंस पीजी, इज बिकॉज पीजी का मतलब है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, दैट इज हायर एजुकेशन की तरफ की जो किताबें हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। शोध गंगा, शोध गंगा इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर एक्चुअली वांट टू डू देयर मास्टर्स और पीएचडी रिसर्च, बिकॉज शोध गंगा के ऊपर इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज की पीएचडी थीसिस अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड दे एक्चुअली अपडेट देयर डेटाबेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ के पे आपको वेरियस यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, जिस भी यूनिवर्सिटी, सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के अंदर CNUC, इतनी सारी थीसिस 15,068 थीसिस यहाँ पे हैं। तो आप जब उस यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हो उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, थोड़ा वेट करते हैं हम, इस तरीके से यहाँ पे एरियाज आ जाएंगे, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज में 870 थीसिस है हमारे पास, यहाँ नीचे डिपार्टमेंट्स पे आ जाएंगे, और ये दिस इज द टाइटल ऑफ द थीसिस, और ये फ्रीली आप किसी भी थीसिस पे क्लिक करके चैप्टर वाइज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स द कॉपीराइट इज विद विद शोध गंगा एज वेल एज विद द एक्चुअल रिसर्चर्स जिसने ये रिसर्च करी है, लेकिन आप उसको पढ़ के, उसको समझ के, एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए जर्नल का कुछ पेपर कभी आपको नहीं मिलता, लेकिन थीसिस में जो है वो ज्यादा डिटेल में हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर को अगर पढ़ना चाहें, चैप्टर 1 पे सपोज मैंने क्लिक किया, तो इस तरीके से आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो शोध गंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उनके लिए जो पीएचडी या मास्टर्स रिसर्च करना चाहते हैं। और एक प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं थीसिस के जो रिकमेंडेशंस हैं, यानी कि रिकमेंडेशन का मतलब है जो फ्यूचर एरियाज हैं, फ्यूचर स्कोप है कि इसमें और क्या काम हो सकता है, वहां से आप अपनी प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द समरी एंड इन फ्यूचर, ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक फॉर्मेट होता है, कुछ लोग एक अलग चैप्टर बनाते हैं कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप का, कुछ लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिसर्च के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अ रिजर्वायर फॉर इंडियन थीसिस, शोध गंगा। देन इज ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु पे भी जर्नल्स मिलेंगे। आपको किसी जर्नल का एक्सेस चाहिए, आपने नहीं खरीदा हुआ है, तो पहले इस वाले लिंक पे जाके चेक कर लीजिए। यहाँ पे से जो भी आपको मिलेगा वो एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। कई बार हमें स्प्रिंगर की या IEEE की जो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती हैं, लेकिन उनमें से कुछ कई बार यहाँ भी अवेलेबल होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इस ई शोध सिंधु पे जाके चेक कर लीजिए क्या वो पर्टिकुलर जर्नल, क्या वो पर्टिकुलर ई जर्नल या बुक अवेलेबल है। कैन यू सी, इतने सारे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने इतना सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पे शेयर किया हुआ है, एक बार यहाँ पे भी जाके चेक कर लीजिए। देन दिस वाज रिलेटेड टू द डिजिटल कंटेंट, चाहे वो थीसिस है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो आपकी जर्नल्स हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर। एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग के अंदर हमारे पास ये चार कैटेगरीज आती हैं, विच इज द ई यंत्र। ई यंत्र बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ से एक बेसिकली काइंड ऑफ वर्चुअल लैब इसको कह सकते हैं। वर्चुअल लैब क्या होती है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ये सारे मैं न्यू टैब में खोल देती हूँ। वर्चुअल लैब्स बेसिकली हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद, तो वो मैं आपको वहाँ बता दूंगी। एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब है कि हाथ से जब स्टूडेंट उस एक्सपेरिमेंट को करके देखेगा तो जो उसकी लर्निंग है वो और अच्छी हो जाएगी। ई यंत्रा बेसिकली आपकी एक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप जो एक्सपेरिमेंट्स है एम्बेडेड सिस्टम्स के या मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, स्मार्ट सिटी मेंटेनेंस के, इस सारे डोमेन्स के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं। तो आप इनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ई यंत्रा ने क्या क्या प्रोडक्ट बनाया वो यहाँ पे भी सारा कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स के अंदर आपको यहाँ पे सारे फ्री एंड ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के लिंक मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे साइलैब इज एन ऑल्टरनेटिव टू मिटलैब, पाइथन का भी अगर आपको करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ई सिम, ओपन फोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो टूल्स हैं ये सारे फ्री एंड ओपन सोर्स टूल्स हैं। इनके ऊपर अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है एजुकेशन, एकेडमी या रिसर्च पर्पस के लिए तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की वेबसाइट, पाइथन को भी आप रन कर सकते हो इसके साथ। एंड देन स्पोकन ट्यूटोरियल, स्पोकन ट्यूटोरियल इज अगेन अ वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म। स्पोकन ट्यूटोरियल के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, किन्हीं कोर्सेज के पे भी आप क्लिक कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको उसका मिलता है कि कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश में इफ इट इज ही और शी इज नॉट कंफर्टेबल तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी, बंगाली के अंदर भी अगर आप सर्च करते हैं तो वो वाले उसका जो
ट्यूटोरियल है वो वहाँ पे उनको मिल जाएगा, और एक लेवल भी बताया जाएगा कि इस वाले ट्यूटोरियल का जो लेवल है वो बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोकन ट्यूटोरियल भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप सेल्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं आईटी एरिया की तरफ से, ज्यादातर आईटी की तरफ से, बिकॉज वही एक्सपेरिमेंट्स आप ज्यादातर कंप्यूटर पे रन कर सकते हो। ठीक है, देन विद ई गवर्नेंस भी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसे यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यूजुअली एक ईआरपी होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ई समर, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय की सारी इन्फॉर्मेशन होगी राइट फ्रॉम देयर एडमिन ड्यूटीज और राइट फ्रॉम देयर अकाउंट्स टू अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के लिए ये सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया, अगेन एक आईसीटी इनिशिएटिव है। देन विद्वान पोर्टल, ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस और योर रिसर्च प्रोग्रेस। विद्वान पोर्टल भी एक पोर्टल है जो बेसिकली ये रिसर्च गेट का ऑल्टरनेटिव है। रिसर्च गेट तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे जो मल्टीपल रिसर्चर्स हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने जो जैसे गूगल स्कॉलर भी है, अपने जो रिसर्च की है उसे उसके बारे में एडवर्टाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं टू द वर्ल्ड। विद्वान पोर्टल बेसिकली जब आप इस पे क्लिक करते हैं, विद्वान पोर्टल है गवर्नमेंट की तरफ से, विद्वान एज यू कैन अंडरस्टैंड, हिंदी में विद्वान का मतलब एक स्कॉलर ही होता है। आप रजिस्टर कर सकते हैं विद्वान पोर्टल पे और वहाँ पे भी अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और जो भी आपका रिसर्च का आउटकम्स है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, then we have the शोध शुद्धि basically is again an alternative, in Indian alternative, Indian developed plagiarism detection software, right? Of course अभी हमने जो ऊपर बात की कि journals access कर सकते हो, thesis access कर सकते हो, तो directly if any student is copying या any participant is copying या कोई भी कुछ copy करके लाया तो आप उसको शोध शुद्धि, again it is an Indian alternative to the famous software Turnitin। ठीक है, विद्वान पोर्टल पे इस तरीके से आपकी प्रोफाइल बन सकती है। यहाँ पे जाके आप प्रोफाइल, इट्स वेरी इजी, रजिस्टर करना चाहते हो, लॉग इन करना चाहते हो अपने अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और वही है बस रिसर्च गेट का ऑल्टरनेटिव है बट एन इंडियन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, आई विल गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं जो आईसीटी की तरफ है। लेकिन इस वाले सेशन में हम वर्चुअल लैब के ऊपर के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि वर्चुअल लैब्स कैसे आपकी टीचिंग लर्निंग को एनहांस कर सकती है ना। तो आईसीटी इनिशिएटिव्स के बारे में तो मैंने बात कर ली है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो जो बेसिकली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, वो उसके अंदर कुछ 3 रिकमेंडेशन ऐसी हैं जो ये डायरेक्ट वर्ड्स आपके एनएपी से उठाए हैं यहाँ पे। दैट इज वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज टू क्रिएट द वर्चुअल लैब्स so that all students have equal access to quality practical and hands-on experiment based learning experiences, है ना। और ये भी बताया गया है कि ये वर्चुअल लैब्स जो भी होंगी ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का या फिजिकल लेबोरेटरी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उसी के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए, या फिजिकल लैब में जाने से पहले बच्चा अगर उस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअल लैब में करके लाएगा तो उसके क्या फायदे होंगे वो भी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। Virtual labs, they have a great potential to enhance actual laboratory experience, overcoming the constraint of time। ठीक है, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं एनईपी 2020 से, तो जो बात करती है वर्चुअल लेबोरेटरीज के बारे में और ऑफ कोर्स एआर वीआर के बारे में भी बात करती है। एआर वीआर इज इनफैक्ट एन एनहांस्ड इमर्सिव एक्सपीरियंस, वर्चुअल लैब को ही थोड़ा और एक्सटेंड कर देना, बट उसके अंदर थोड़ी ज्यादा इमर्शन है। वीआर हेडसेट को पहन के जब वो स्टूडेंट उस एक्सपेरिमेंट को करता है तो उसको एक्चुअली में लगता है कि वो रियल में कर रहा है। ठीक है, वर्चुअल लैब को समझने के लिए हम उसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि वो एक कोई भी ऐसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है जिसमें जो आपका रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट है उसकी सिमुलेशन चल रही है। सिमुलेशन का मतलब उस रियल फिनोमिना को आपने एक वीडियो के माध्यम से या एक गेम के माध्यम से आपने उसको स्टूडेंट्स के सामने दिखाया है, एंड इट अलाउज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर अ टॉपिक बाय कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग डिफरेंट सिनेरियोज। सपोज जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट जब हम स्कूल में करते हैं तो वी चेंज द वैल्यू ऑफ VI and actually see what is the effect on the R value basically। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी आपके मतलब अवेलेबल हैं। just correct me if I'm wrong, but that's how Ohm's law is done। Virtual labs are digital interactive activity simulations that actually take place in physical lab, and they are they simulate the equipment, tools, procedure। तो जैसे हमारी नॉर्मल फिजिकल लैब में जब आप घुसते हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक्स या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो भी हम लैब बनाते हैं उसमें एक पिक्चर लगाई जाती है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, है ना। और हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ कुछ चीजें होती है जो हम उनसे लैब मैनुअल बनवाते हैं बच्चों से, जिसमें हम पहले लिखते हैं what is the theory behind it, what is the pre-test, what is the post-test। ठीक है, और उसके बाद उसी लैब मैनुअल से जब वो कोर्स खत्म हो जाता है उसमें से उसका वाइवा लेते हैं ना। तो ये 4-5 चीजें हैं
ये मैं आपको वर्चुअल लैब में भी दिखाऊंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस IITs, NITs और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके बनाया है। बट ये काम कैसे करती है, ऑफ कोर्स दे आर ऑपरेटेड ऑनलाइन, एंड कोविड के बाद से तो इसका रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, कि ऑनलाइन भी वो स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और इसको हम स्किप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बेसिक कंपोनेंट्स क्या है लैब के, थियरी एंड प्रोसीजर ये होता है हमारे में वर्चुअल लैब के अंदर, बट एनिमेशन और वीडियो वाला पार्ट भी आ जाएगा, देन द सिमुलेशन प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, देन द वाइवा वोस, एंड देन ऑफ कोर्स द फीडबैक। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्चुअल लैब्स इन एजुकेशन? अब इसका क्या फायदा है कि फिजिकल लैब्स का एक लिमिटेड एक्सेस है, और वो भी हम ज्यादातर बिकॉज इक्विपमेंट जो है वो लिमिटेड है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, ग्रुप मोड में ही हम उसको कराते हैं, और ग्रुप मोड में भी कोई एक स्टूडेंट्स बाकी सारे स्टूडेंट्स को आउटशाइन करके या तो एक ही करता है, या फिर सारे स्टूडेंट्स इक्वली उस इक्विपमेंट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वर्चुअल लैब का सपोर्ट दिव्यांग स्टूडेंट्स को, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी मिलेगा, जो एक्चुअली लैब तक नहीं जा सकते या उस एक्सपेरिमेंट को उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली गोइंग टू ऐड एज अ विजुअल एड। कोई भी कॉम्प्लेक्स टीचिंग कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं समझा, मतलब एक नॉर्मल ब्लैक बोर्ड माध्यम से या पावर पॉइंट के मीन से नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें ये एक विजुअल एड हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट सेफ्टी भी है इसके अंदर, कि कोई भी केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, तो इस तरीके की लैब्स अगर आप वर्चुअल लैब में क्रिएट कर सकते हैं कि अगर इस तरीके के दो केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो इट देयर कुड बी रीजंस ऑफ फायर, ये वो, तो इस तरीके की वर्चुअल लैब, ये सिनेरियोज आपको एज अ टीचर खुद बनाने हैं, बट इस तरीके की काफी लैब्स अभी अवेलेबल हैं, बन चुकी हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेस। अब दे आर गोइंग टू एंगेज द लर्नर्स। अल्टीमेटली हमारा ये गोल है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव लर्निंग हो, और जो स्टूडेंट एंगेजमेंट हो वो बहुत ज्यादा हो, राइट, and they are affordable alternatives to physical labs, ठीक है। So of course they are not replacements to physical labs, they are actually amplifiers and they act as a preparatory ground, है ना। तो दो तरीके की वर्चुअल लैब होती है, एक होती है सिमुलेशन बेस्ड वर्चुअल लैब, एक होती है रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब। सिमुलेशन बेस्ड वर्चुअल लैब के बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसके अंदर आपने उस एक्सपेरिमेंट का सिमुलेशन दिखा दी है सिस्टम के ऊपर, यानी कि वो इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स सेम टाइम पे उस लैब को एक्सेस कर सकते हैं, उस वर्चुअल लैब को, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब वो होती है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट तो आपका फिजिकल हार्डवेयर पे ही होगा। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन NISSEE या चंडीगढ़ के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इक्विपमेंट है, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट हमें लिख के एक पर्टिकुलर एक फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप हमें लिख के देंगे आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना चाहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम अपने इक्विपमेंट के ऊपर रन करेंगे, और फिर आपको जो रिजल्ट्स हैं वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये भी एक वर्चुअल काइंड ऑफ लैब ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ टाइम स्लॉट्स आपको दिया जाएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट इस टाइम में कंडक्ट किया जाएगा, कुछ इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होगा इसके अंदर भी, ठीक है। तो बट एक्सपेरिमेंट हो रियल इक्विपमेंट पे रहा है, लेकिन रिमोट ट्रिगर्ड है, आप कहीं और से अपना एक्सपेरिमेंट को सबमिट कर रहे हो, बट इफेक्टिवली वो हो रियल डिवाइसेस पे हो रहा है। तो इस केस के अंदर मेरे को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर IoT से रिलेटेड मुझे एक लैब पता है, विच इज दी FIT IoT लैब, उसका नाम आगे आएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से कुछ अपनी रिसर्च IoT में करना चाहता है, तो वहां पे क्या होता है, आप अपना एक्सपेरिमेंट सबमिट करते हो, और स्पेन में वो रियल IoT डिवाइसेस इम्प्लांटेड हैं जिसके ऊपर वो आपका एक्सपेरिमेंट रन करते हैं और फिर आपको रिजल्ट्स वापस देते हैं। सो दैट इज अ रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब काइंड ऑफ होगी। ऑफ कोर्स जो पहला इंटरफेस है, जो पोर्टल है, वो तो वेबसाइट ही है, वेबसाइट पे आप अपना एक्सपेरिमेंट दोगे और फिर वो कंडक्ट करेंगे रियल डिवाइसेस के ऊपर। What is the benefit that is of this pedagogical integration of virtual labs to your current subject? Learners को तो of course benefits होएगा ही, उनके theoretical concepts revise होंगे, sorry, they will be able to analyze their results, logical thinking improve होगी, है ना। टीचर्स के लिए क्या बेनिफिट है कि अपना जो आप लेसन प्लान बनाओगे, जो भी आप मतलब बिफोर गोइंग इन फॉर वेरियस एक्रेडिटेशन, जो आप लेसन प्लान बना रहे हो उसके अंदर आप वर्चुअल लैब का जो इंटीग्रेशन है वो पहले से ही डिजाइन करके लाओ अपने लेसन प्लान के साथ, ठीक है। यूज वर्चुअल लैब्स टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स एंड हेल्प लर्नर्स इन डेवलपिंग सच स्किल्स, ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन है, प्रेडिक्शन है, कुछ वेरिएबल्स हैं जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एंड एक्सेट्रा। So what are the, I would like all of you to take a screenshot of this कि ये सारी virtual labs जो simulation based, ये simulation based labs की बात कर रही हूँ, ये remote triggered lab नहीं है, simulation based lab की बात कर रही हूँ, virtual labs जो इंडिया की हैं, that is the Diksha lab, that OLabs and virtual labs, vlab.co.in। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो दीक्षा है, this is for school education। I'll just go and paste this particular link।
ठीक है, जो diksha.gov.in पे वर्चुअल लैब अवेलेबल है. सो इट इज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. अब बिकॉज पॉसिटी ऑफ टाइम है तो हम इसको एक एक करके नहीं जाएंगे, बट यू कैन ऑलवेज चेक ऑन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम और कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके की वर्चुअल लैब अवेलेबल है. तो वो आप फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 कौन सा प्लेटफॉर्म है हमारा, दीक्षा वर्चुअल लैब हमारे पास अवेलेबल है. कमिंग ऑन टू ओ लैब्स पे अगर हम बात करें, आई जस्ट गो अहेड एंड पेस्ट द लिंक हियर, olabs.edu.in. यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इन्होंने यही लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनविजन्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी थ्रू लर्निंग गेम्स सिमुलेशंस ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी. उसी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे. द लिंक टू ओ लैब्स इज करंटली नॉट वर्किंग, मे बी वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन इन द मीनवाइल. वर्चुअल लैब्स का लिंक आई हैव ऑलरेडी ओपन. तो ये बेसिकली आपका वर्चुअल लैब्स का लिंक है. ये हमारे ज्यादा काम आएगा बिकॉज इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, हायर एजुकेशन, पीजी वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वर्चुअल लैब्स के ऊपर. ठीक है, अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू आईसीटी. इट इज इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे इस वर्चुअल लैब्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फिलोसफी है, कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे नीचे आते रहते हैं. ठीक है, क्या अनाउंसमेंट्स हैं इनकी. अगर आपके सेंटर में इतनी फैसिलिटीज हैं, आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ये फैसिलिटीज हैं कि आप एक वर्चुअल लैब क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्चुअल लैब अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, यू कैन ऑलवेज राइट इन टू देम. ठीक है, अगर आपको नोडल सेंटर बनना है तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो. ठीक है, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज राइट इन टू देम, उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और हमें इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर एक वर्चुअल लैब चाहिए. एनीवे, तो करंटली जो अभी अवेलेबल है ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब्स वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल मेजर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग फॉलोड बाय सम 2 branches of sciences as well, physical sciences and chemical sciences. So let's say because my area is computer science and engineering, I'll just click on computer science and engineering. It will take me to these virtual labs. और यहाँ पे राइट साइड में ये भी बताएंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट ने ये वर्चुअल लैब क्रिएट की है. ऑफ कोर्स देयर इज लैब फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, राइट फ्रॉम द न्यूअर टॉपिक्स to of course the basic topics of CSC like computer organization, computer programming, cryptography, data structures, natural language processing and so on. तो इसको आपको एक एक करके you have to go through and check the experiments. Suppose let's say let me just take you to computer organization and architecture lab. मैं एक दिखा देती हूँ आपको कि इसके अंदर कैसे प्रोसीजर होता है. राइट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर लैब. राइट, तो यहाँ पे जब ये खुलता है तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव द इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव कि इस लैब के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये भी हम यूजुअली करते हैं हमारी लैब्स में. व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस, यूजी एंड पीजी, ये सारी ब्रांचेस ये वाला सब्जेक्ट पढ़ती हैं. कोर्स अलाइनमेंट कि ये वाली जो लैब में जो बनाई है, ये जो वर्चुअल लैब क्रिएट की है कि वो कौन से वाले इंस्टीट्यूट के लैब के सिलेबाई के साथ इन्होंने उसको चूज किया है. एंड देन इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर फीडबैक रिलेटेड टू दिस वर्चुअल लैब वो आप यहाँ पे दे सकते हो. तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में सपोज के मैप है. के मैप यूजुअली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ के मैप क्या है, डिजिटल सर्किट को मिनिमाइज करना है, यानी एक्सप्रेशन को हमें कम करना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएससी पीपल माइट ऑलरेडी बी नोइंग ऑफ इट. सिंप्लीफिकेशन करनी होती है बेसिकली हमें उसकी. तो अगेन यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखिए, एक्सपेरिमेंट का एक एम है, एक थियरी है, थियरी सारी गिवन है. यही करवाते हैं हम अपने स्टूडेंट से यूजुअली लैब में. एक प्री टेस्ट है कि आपको कितना पता है ये एक्सप्रेशंस के बारे में एंड और के बारे में. तो ये एक प्री टेस्ट है, ये बच्चा सबमिट करेगा क्विज, तो उससे पता चल जाएगा कि व्हाट इज माय करंट नॉलेज बिफोर आई एक्चुअली गो टू एंड परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ के मैप. व्हाट इज द प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर समझाया हुआ है सारा. देन वी क्लिक ऑन सिमुलेशन. ठीक है, यहाँ पे सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं जैसे ही हम, तो इस तरीके से एक रैंडम एग्जांपल शो हो जाता है. व्हाट इज द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 to 8. अब इसके अंदर क्या है, यूजुअली सो फार एज आई नो मैक्सिमम हमें जब व्हेन वी वर डूइंग आवर इंजीनियरिंग हमें 5 तक करवाया गया था कि 5 वेरिएबल्स का के मैप को कैसे सिंप्लीफाई करना है. बट इफ यू वांट योर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट 6 7 and 8 और ये बोर्ड पे या पावर पॉइंट पे बनाना मुश्किल है, तो वो इसके थ्रू यहाँ पे इजीली जैसे आपने 6 वेरिएबल्स किया तो उसकी मिनिमाइजेशन करना यहाँ से वो समझ सकते हैं. ठीक है, तो करंटली इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स और डोंट केयर आपने अलाउ करना है कि नहीं करना, हाइड करना है रिजल्ट की नहीं करना, सपोज दिस एंड दिस. ठीक है, इस तरीके से जो है ये रिजल्ट अगर आपको हाइड करना है तो हाइड कर दीजिए. ठीक है, और जब आप क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी, आपकी वंस हो जाएंगे. तो उस वंस के बाद आपका जो भी सिंप्लीफाई करके जो भी टर्म बनती है वो आपकी नीचे शो हो जाएगी. राइट, तो इस तरीके से के मैप बनता है, ग्रुपिंग ऑफ वंस. तो इस तरीके से आपको जो आपका आंसर है के मैप की जो सिमुलेशन है वो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर ने एक वर्चुअल लैब यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है.
Likewise, we have virtual lab for data structures also. Data structures के अंदर भी यहाँ पे आपके जैसे सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, हैशिंग है, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को लेके यहाँ पे ट्रीज हैं, डीएफएस पढ़ाते हैं, बीएफएस पढ़ाते हैं, तो उसको इसके एक्सपेरिमेंट के साथ इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकता है और फिर ये समझ सकता है कि अच्छा मैं ये वाला अगर जैसे के मैप था, के मैप में आप कितने उससे एग्जांपल्स करा लोगे, बट इस वर्चुअल लैब के कॉन्सेप्ट के पास साथ तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस हैं जिसमें वो खुद ही वन को सेट करके फिर वो चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सपोज आई गो टू हैश टेबल्स, हैश टेबल में भी अगेन व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइम, क्या ऑब्जेक्टिव है, अगेन प्री टेस्ट, हैश टेबल्स, लीनियर प्रोबिंग, यही सब हम बच्चों को पढ़ाते हैं हैशिंग के अंदर। कोलिजन रेजोल्यूशन कैसे होती है, सिमुलेशन कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके की सिमुलेशन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दी भी हुई है कि सपोज यू वांट टू इंसर्ट दिस इन दी हैश टेबल, so basically 66 will go to 6 because it has 10 entries, 80 will go here। तो इस तरीके से करके एक दो गलत भी मैं आपको करके दिखा दूँ, सपोज 82 में वैसे तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे जाना चाहिए, पर मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देती हूँ 89 एंड देन 45। so suppose I say submit, तो यहाँ पे वो ये भी रिफ्लेक्ट कर देगा कि what are the correctly filled boxes and what are the incorrectly filled boxes। ठीक है, तो उस 82 को I will just correct and take it to index position 2 and then submit। इसको मैं I will just delete और अब submit, ठीक है, इसको भी delete and submit, right। 44, yes, one was missing। ठीक है, इस तरीके से आपका फीडबैक बेस्ड है ये, उसी टाइम स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि व्हाट आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस एंड देन अगेन यू कैन गो टू द न्यू क्वेश्चन। तो ये this will be very much particular to what area of engineering you are from। ठीक है, तो these were from computer science, electronics और communication का अगर हम बात करें तो we will have multiple experiments। जो भी आपका एरिया है, I would request all of you to एक बार आप go through कीजिए, जैसे basic electronics, digital electronics lab यहाँ पे available है, not just these, जैसे physical sciences और chemical sciences भी है, anthropology की lab है, heat and thermodynamics lab है, इस तरीके की labs भी और फिर virtual labs भी यहाँ पे institutions ने develop की है and you can actually design a lesson plan wherein you can incorporate these virtual labs so that you can effectively achieve those learning outcomes through your students। ठीक है, जो भी आपने बनाए हैं learning outcomes वो actually में अचीव हो और बेहतर तरीके से अचीव हो पाएंगे अगर आप ये वाली वर्चुअल लैब्स वाला कॉन्सेप्ट भी अपने क्लासरूम में इंटीग्रेट कर देते हो तो। और अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड में भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वर्चुअल लैब्स इन द वर्ल्ड और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है अपार्ट फ्रॉम द इंडियन इनिशिएटिव्स, जिस पे जाके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस की, बायोलॉजी की जो लैब्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी एंड सर्किट्स की ये सारी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल था उसकी जगह आपके ये JS Fiddle, JDoodle ये सब अवेलेबल है। मैथमेटिक्स जिसकी वर्चुअल लैब्स यूजुअली नहीं मिलती है, फ्री गिज्मोस करके है। देन अप्लाइड साइंसेज एंड मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट एरिया से है उनके लिए भी यहाँ पे ये जो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वी हैव अप्लाइड साइंसेज एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे भी आपको एक न्यू प्रोजेक्ट दिया जाएगा कि सपोज हाउ डू यू मैनेज द फंड्स, हाउ वुड यू एलोकेट द टास्क, इस तरीके की जो मैनेजमेंट टास्क हैं जो वर्चुअल लैब है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। IoT रिलेटेड मैंने एक्सप्लिसिटली अलग से लिस्ट की है, FIT IoT लैब जो एक रिमोट ट्रिगर्ड वर्चुअल लैब है जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है। IoT5 है, FedFire है, MQTT लैब है एंड सो ऑन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज जो मैंने जैसे क्लास पॉइंट डिस्कस किया उसको छोड़ के भी अपनी टीचिंग को गेमिफाई करने के लिए आपके पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। सम ऑफ देम आर सब्सक्रिप्शन बेस्ड, सम ऑफ देम आर फ्री, सम ऑफ देम आर अवेलेबल इन ट्रायल वर्जन, यू कैन एक्चुअली गो एंड चेक देम फॉर योरसेल्फ। एंड देन देयर आर अदर फ्री गेमिफिकेशन वेबसाइट्स फॉर क्लासरूम। ये बेसिकली एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने खुद ही गूगल सर्च करके जो अवेलेबल था, तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये तभी सक्सेसफुल हो पाएगी हमारी टीचिंग लर्निंग जब इन गेमिफिकेशन वाली चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट इज प्राइमरीली यूजफुल वेयरइन यू वांट टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब एंगेजमेंट की बात हो रही है या इमर्शन की बात हो रही है तो AR VR को भी हम जस्ट गिव मी अनदर 5-6 मिनट्स, आई विल जस्ट रैप अप द सेशन। AR VR का बेसिक्स आपको सच आई थिंक डिस्कस हो चुका है, व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, देन वर्चुअल रियलिटी, एंड इन मिडल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द मिक्स्ड रियलिटी। So I will quickly show you some of the apps which I have developed using the Unity platform. I will not be teaching you how do you actually create those apps because again it will be very much into for those people who are good in coding and everything, but फिर भी मैं आपको एक reference point दे दूंगी कि किस तरीके से Unity software use किया जाता है। So this is the software, I am writing the name of the software, that is Unity, which is a real-time development platform to create 3D games, not just games but content, e-content in general,
it could be 3D, it could be 2D, it could be VR, AR, etc. So using the Unity platform आप कर सकते हो. अब Unity platform के अंदर I'll just write the name of the software in the chat box, Unity. अब Unity का क्या benefit है कि it is free for educational purposes, ठीक है, एजुकेशनल पर्पसेस. मैं एप्स दिखाने से पहले आपको यूनिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जस्ट एक ब्रीफ दे रही हूँ. यूनिटी को रन करने के लिए जो आपके पास जो सिस्टम चाहिए, उसकी जो ग्राफिक कार्ड है, जो उसकी रैम रोम है, वो थोड़ी इट शुड बी टुवर्ड्स अ बिट टुवर्ड्स दी हायर एंड, अदरवाइज आपका सिस्टम हैंग करेगा. अब यूनिटी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए फ्री है. अगर आप इसको कमर्शियल या जैसे एप्पल प्ले स्टोर पे आपने कोई गेम बना दिया और आप उसे डालना चाहते हो, है ना, बिकॉज इसका फायदा क्या है यूनिटी का, मैं आपको ये बता दूं. यूनिटी से आप ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जा सकते हो. बेसिकली आपने यूनिटी पे कोई भी चीज बनाई ना, आप उसको एंड्रॉयड फोन में भी लेके जा सकते हो, आईफोन में भी लेके जा सकते हो, उसको एक विंडोज गेम भी बना सकते हो. मे बी इन सम अदर लेक्चर आई विल शो यू कि कैसे यूनिटी से करते हैं, या फिर आई ट्राई एंड कीप अ लिंक फॉर माय प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे मैंने हल्का सा यूनिटी के बारे में बताया है कि कैसे डेवलप करते हैं. मे बी आई थिंक वी हैव अनदर कोर्स ऑन स्पेसिफिकली ऑन AR VR, जिसके अंदर मैं यूनिटी के साथ कैसे वो डेवलप करते हैं वो बताती हूँ. तो आप हमारे वो प्लान को रेफर कर लीजिएगा, और उसके अंदर जो सीखना चाहता है कि कैसे वो बनता है यूनिटी को यूज करके, वो वी विल बी एक्सप्लेनिंग. कमर्शियल यूज के लिए अगेन इट्स नॉट फ्री, ठीक है, वो फ्री नहीं है. तो उसका जो बिल्कुल फ्री एंड ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव है, जिसे हम FOSSE कहते हैं, वो है अनरियल इंजन. ठीक है, अनरियल इंजन का भी मैं गूगल सर्च करके आपको दिखा देती हूँ कि अनरियल इंजन भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आप AR VR की एप्स जो है, 3D क्रिएशन, जो गेम्स हैं, जितनी भी आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके अपने किड्स हैं, अगर वो भी कोई 3D गेम कोई खेल रहे हैं, तो ज्यादातर जो गेम्स बन रही हैं, जो इस तरीके की ग्राफिक्स बन रही हैं, 3D ग्राफिक्स बन रही हैं या एनिमेशंस बन रही हैं, वो अनरियल के अंदर और यूनिटी के अंदर बनाई जा रही है. ठीक है, सो अब मैं आई विल क्विकली शेयर माय फोन स्क्रीन, और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे मैंने APK, बिकॉज ऑफ कोर्स माय फोन इज एन एंड्रॉयड फोन, तो मैंने APK फाइल की तरह अपनी गेम को या एजुकेशनल कंटेंट को, पहले मैं गेम दिखाऊंगी आपको, एजुकेशनल कंटेंट को बनाया है. ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू माय पावर पॉइंट वंस अगेन. अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं, जब वो इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना, तो इससे वो उन्हें अलाउ कर देगा, वो उनसे पूछेगा कि वेदर यू वांट टू डाउनलोड दिस APK फाइल. तो मतलब ऑल्दो इसके अंदर कोई मैंने मालवेयर या कुछ नहीं रखा है, ये एक टेस्टिंग फेज की ऐप मैंने बनाई है, मतलब ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेरे को आपके साथ ऐसे शेयर करनी पड़ रही है. तो जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आपको एक APK इंस्टॉल करने को बोलेगा. ऑफ कोर्स इट इज APK, तो वो सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही है. तो APK इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद जो आप करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं आई विल जस्ट शेयर माय फोन स्क्रीन. तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो कर सकता है इस QR कोड को स्कैन करके. आई विल जस्ट ज्वाइन द लिंक यूजिंग माय फोन. राइट, सो आई हैव ज्वाइंड फ्रॉम माय फोन ऑल्सो. तो अब मुझे यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि मैं आपको वहां से दिखा सकूँ. आई विल स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग, और मैं एक ही बारी में आपको सारी वो दिखा दूंगी एप्स जो मैंने बनाई हुई है. शेयर द स्क्रीन. आई होप यू कैन सी माई फोन स्क्रीन नाउ. ठीक है, मैंने फोन से प्रेजेंट किया है. अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैंने जो एप्स बनाई हैं. ठीक है, बेसिकली माई फर्स्ट ऐप इज दी मेज ऐप, है ना, जो मैंने आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई थी पावर पॉइंट में, वही मेज ऐप मेरे सामने अभी प्रिंटेड में पड़ी है. ठीक है, मेड विद यूनिटी लिखा आया है मेरे फोन में, बिकॉज मैंने इसीलिए फोन की स्क्रीन प्रेजेंट किया ताकि आप समझ सके. मेड विद यूनिटी मैंने बनाया है. कैन यू सी? अभी मेरा कैमरा को मैं थोड़ा हटाती हूँ. दिस इज माई फोन्स कैमरा जो आप अभी प्रीव्यू देख रहे हैं, और उसके ऊपर ये एक, हम जब छोटे थे तब गेम खेलते थे, है ना, तो ये जो प्रिंटेड है इसको मार्कर बोलते हैं. बेसिकली AR के अंदर मार्कर बेस्ड AR है ये. और जब मैं ये वाली गेम हमने अपनी हार्ड उसके मतलब मतलब विद द हार्ड मटेरियल हमने अपने हैंड में भी खेली है, कि जिसमें हमें ये बॉल मूव करनी होती है. कैन यू सी दिस बॉल इज मूविंग? ये बेसिकली लॉ ऑफ फिजिक्स को यूज करके हमने, जैसे ये कैमरा इसके ऊपर जा रहा है तो वो देखिए बॉल मूव कर रही है ना. तो जैसे ही दिस इज एन AR मेज गेम, बेसिकली मेज ही है लेकिन वो AR में है. अगर एक्चुअली में आप देखें तो इस पेज के ऊपर, कैन यू सी माय हैंड, इस पेज के ऊपर कोई गेम नहीं है, ये ऑगमेंटेड, इसके ऊपर हमने ऑगमेंट किया कि जैसे मेरे फोन का कैमरा
इस टारगेट को, ये जो टारगेट इमेज है, विल जस्ट, ये जो टारगेट इमेज है जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ, इसको देखेगी, वो इस ऑगमेंटेड कंटेंट को इसके ऊपर डाल देगी। और ये वाली जो बेसिकली मैंने गेम बनाई है वो यूनिटी के साथ बनाई है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ AR कंटेंट जिसके अंदर स्टूडेंट इंगेज होगा। ऑफ कोर्स ये तो एक गेम है, ये तो रिक्रिएशनल पर्पस के उससे है, एजुकेशनल नहीं है ये, बट ऐसे इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आप यूनिटी के साथ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई विल गो अहेड एंड क्लोज दिस ऐप नाउ, ठीक है। आई विल शो यू अनदर ऐप, एक गेमिंग ही है, उसके बाद जो एजुकेशनल के लिए बनाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक एलियन गेम बनाई है, ये भी यूनिटी के साथ बनाई है, आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इस एलियन के ऊपर मेरा जाएगा तो इस तरीके से एक म्यूजिक चलेगा और जो स्पेसशिप है उसमें से एलियंस उतरेंगे, कैन यू सी, ठीक है। और यहाँ पे आई विल हैव टू कीप दिस 1 सेकेंड, आई विल डू इट अगेन since the player got off that, 1 second, give me a second, since it got off that flank तो वो lose कर गया। I will just set my target once, I will close the app, एक बार फिर से करते हैं इसको, एलियन गेम को। तो अब मैंने अपने टारगेट को थोड़ा सीधा कर दिया, बिकॉज फिर अगर मेरा टारगेट हिलता है तो मेरा ये भी हिलता है फ्लैंक, सी। तो ये जो मेरे लेफ्ट एंड राइट पे एरोज हैं ये भी हमने यूनिटी से बनाया है। इन एरोज को यूज करके मैं प्लेयर को उधर लेफ्ट और राइट मूव कर सकती हूँ, और जो एलियन है उसको, सिंस इट इज इन बीटा, तो हल्का सा आपको ये लगेगा कि वो प्लैंक से चला गया है, हल्का थोड़ा बहुत, मतलब मॉडिफिकेशंस जो फिजिक्स के लॉज हैं, ग्रेविटी या फ्रिक्शन, ये सब आपको थोड़ा करना होता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। अगर आपका प्लेयर ऑफ द प्लैंक चला जाए तो यू लूज द गेम। तो बेसिकली दिस इज इसके अंदर जो है आपकी इंटरैक्टिविटी वो फोन के टच से है, कैन यू सी। अभी मैं राइट में टच कर रही हूँ तो वो वाइट हो रहा है, एंड पिंक पे टच कर रही हूँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट वाला, तो वो वाला राइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपकी इंटरैक्टिविटी जो है सॉरी, जो आपकी इंटरैक्टिविटी है वो क्या हो गई है। जस्ट गिव मी अनदर 5 minutes, आई विल क्विकली रैप अप, आई एम सॉरी आई हैव टेकन 10 minutes ऑफ योर सेशन। इंटरैक्टिविटी जो है वो फोन के साथ है ना। तो नेक्स्ट ऐप इज दी 4-stroke इंजन। ये अब एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कि सपोज अब आप, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ पहले आपको, पहले चलो देख ही लेते हैं, बिकॉज वो खुल गई है, फिर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूंगी। सपोज आपने कोई बुक बनाई है ना, कोई बुक है, उस बुक के बाद आपने टारगेट बना के, दिख रहा है आपको वो ही 4-stroke इंजन मुझे AR में नजर आ रहा है। अब मैं जब उस पर 2 fingers रख रही हूँ ना, तो ये बड़ा हो रहा है ना, हो रहा है बड़ा इंजन, 4-stroke इंजन। यानी कि एक 3D मॉडल बनाना है, पहले उस 3D मॉडल को यूनिटी में लेके जाना है, उसको यूनिटी में ले जाके एक AR ऐप बनानी है, और फिर उसमें कोड करना है, कोडिंग कोड लिखना है कि जब बंदा 2 fingers के साथ पिंच करे, है ना, जब हम किसी भी इमेज के ऊपर, हमारे पास जो इमेजेस होती है फोन में, उसमें 2 fingers करते हैं तो क्या होता है, जूम इन हो जाता है, और पास लाते हैं फिंगर्स को तो जूम आउट हो जाता है, करेक्ट। और सिंगल टच पे मैंने कोड किया हुआ है कि ये रोटेट हो जाए। तो किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द 4-stroke इंजन। ऑफ कोर्स अभी ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब सिर्फ अभी रोटेशन और स्केलिंग की फंक्शनैलिटी इसके अंदर है, बट इसके अंदर आप और चीजें भी डाल सकते हो कि सपोज मैं इस पे क्लिक करूं तो इस वाले पार्ट का, किसी भी पार्ट पे क्लिक करूं या किसी पार्ट के अंदर जाना चाहूं तो मैं उस पार्ट की फंक्शनैलिटी क्या है वो समझ सकूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 4-stroke इंजन वाली ऐप है ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमने बनाई है। आपका कैमरा इधर उधर होगा तो वो हट जाएगी इमेज, लेकिन जैसे ही उसको टारगेट मिलेगा वो फिर से उसके ऊपर अपने आप को रख देगा, वो 3D मॉडल जो AR मॉडल है अपने आप को फिर से उस इमेज के ऊपर प्लेस कर देगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी को? हालांकि मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया, बट मैं सिर्फ एक ये आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इस तरीके से भी आपका जो टीचिंग लर्निंग है, इस तरीके की भी एप्स अवेलेबल हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिससे कि आप सेशन अपने टीचिंग को एनहांस कर सकते हो। अब सिंस टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको टूल का नाम बता देती हूँ। Ma'am, this printout is to be taken or PPT can be shown? सर PPT कैन बी शोन। अब अगर आपने APK डाउनलोड कर लिया तो आप अपने फोन को इस वाली इमेज के सामने लेके आओगे ना, जैसे अभी, Okay. तो आप कर पाओगे। वो प्रिंट आउट सिर्फ इसलिए होता है, ईज ऑफ एक्सेस के लिए होता है कि आप पेज को हिलाओगे तो आपकी इमेज के अंदर जो बॉल है वो भी हिलेगी। ईज ऑफ एक्सेस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को भी सर, जब हम बुक्स देते हैं, जैसे जो भी ई बुक्स बनाते हैं या नॉर्मल बुक्स बनाते हैं, नॉट जस्ट ई बुक्स, उस मॉडल को, उस टारगेट को आप एक इमेज टारगेट बना दो AR के लिए। I think small printouts can be given so that the students know to. Yes. Of course, yes, sir. If you don't wish to give,
तो आप इस तरीके से भी शेयर कर सकते हैं जैसे मैंने शेयर किया हुआ ये पावर पॉइंट। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ताकि आप अपने लेवल पे इसको Please, एक्सपीरियंस please, कर please. सकें। Thank you. तो मैंने हेलो Yes, मैडम, ये sir. यूनिटी प्रोग्रामिंग के लिए क्या मटेरियल, क्या है लर्निंग मटेरियल, क्या है इसकी? सर यूनिटी प्रोग्रामिंग बेसिकली सी शार्प है बैकएंड पे तो, बट बाकी इंटरफेस जो है वो इजी है। मतलब उसके काफी ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे यूनिटी के ऊपर। यू कैन जस्ट गो एंड राइट फर्स्ट AR ऐप यूजिंग यूनिटी, वो इजी है। लेकिन इफ यू आर अनेबल टू कैच अप तो हमारा AR VR पे भी स्पेसिफिकली सर कोर्स आएगा। यू कैन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द डेट्स, बट एक बार आप प्लीज ओप्लान को गो थ्रू कर लीजिएगा सो दैट यू विल बी एबल टू अटेंड। और अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं यहाँ से भी सीख सकते हैं निटर के पोर्टल कोर्सेज से, अदरवाइज यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सर। So okay, so again the left one is the target image, right side is the QR code for the APK file, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक बारी वार्निंग तो देगा आपका फोन कि आप किसी अनट्रस्टेड सोर्स से APK इंस्टॉल कर रहे हो, बट ये सिर्फ टेस्टिंग फेज में हमने एप्स बनाई हैं APK फाइल्स। तो मतलब ये इसीलिए वो बोल रहा है बिकॉज वो वेरीफाइड नहीं है गूगल से कि इसके अंदर इसके साथ मैं कोई आपके फोन से मेलिशियस कंटेंट तो नहीं ले रही। सो आई एम नॉट टेकिंग एनी मेलिशियस कंटेंट फ्रॉम योर फोन्स, बट ये एक बेटा टेस्टिंग में है तो इस वजह से वो एक देता है। Again, there are some limitations of gamification. ये मैं PPT आपके साथ share कर दूंगी, so you can just go through it. Then you have interactive videos in education. ये लास्ट चीज है, बस यही आई थिंक मेरा लास्ट टॉपिक था, इंटरैक्टिव वीडियोस कैसे बनाते हैं। सो सिंस अभी टाइम कम है तो मैं थियरी नहीं डिस्कस कर रही कि कैसे एक्टिव लर्निंग हो जाएगी, पर्सनलाइज लर्निंग हो जाएगी। किसी भी वीडियो को बनाने से पहले ही आपसे डिस्कस किया जा चुका है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, स्टोरी बोर्ड होता है। देन ये राइट टूल्स हैं कुछ, दीज आर सम ऑफ द टूल्स जिसको आप यूज करके इंटरैक्टिव वीडियो बना सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, विच इज H5P, जो मेरे को अभी डिस्कस करना था, बट मे बी सम अदर टाइम। इसको आप खुद से ही एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं आपको अभी टूल्स बता देती हूँ कि इंटरैक्टिव वीडियो H5P है, एडपजल है, कैमटेसिया है, अडोब कैप्टिवेट है। दीज आर सम ऑफ द टूल्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक द स्क्रीनशॉट आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन। दीज आर सम ऑफ द टूल्स जिससे आप इंटरैक्टिव वीडियो भी बना सकते हो। अगेन उस वीडियो के अंदर भी आप पोल्स ले सकते हो, क्विज ले सकते हो, ब्रांचिंग सिनेरियो बना सकते हो कि सपोज वीडियो पढ़ रहे हो आप। आई थिंक कोर्सेरा के अंदर ये है कि वीडियो पढ़ने के बाद एक क्विज आता है, तो जब तक आप वो क्विज को आंसर नहीं करते आप नेक्स्ट मॉड्यूल नहीं ओपन कर सकते। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो इंटरैक्टिव वीडियो के साथ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आई थिंक आई नो द लास्ट 10-15 minutes were a bit quick. If there are any questions, I will be really happy to answer. Just let me know.